हेलो एवरीवन। तो अभी मैं अटेम्प्ट करूंगा फुल टेस्ट नंबर 15 फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। टेस्ट 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 बुक। हम्म हम्म ओके। All tubes are pipes. All tubes are pipes. All switches are pipes. All switches are pipes. All pipes are bolts. All pipes are bolts. Okay. So all switches are bolts. All switches are bolts. All bolts are tubes. All bolts are not tubes. Some bolts are switches. Some bolts are switches. Right. One and three. Eating junk food is not good for health. Okay, junk food has a high amount of fats and reduces sodium leading to obesity. High intake of sugar and fast and मैं नहीं करूँगा. Motherland मैंने better correct water intake. T N A H less than O. H यहाँ पर क्या H less than O ये नहीं. G less than N. G less than N यहाँ पर N आएगा तो G less than ये होगा. J less than X. J less than X. नहीं only two. Only two. Anxious. निकल लेते हैं. A1 N14 X24 I9 and O15 21 S19 which A1 C3H8 I9 M13 O15 21. Seven people bathroom for admission to AIM social work course. The condition of our experiencing social work may be relaxed by the admission committee to the best candidates. Okay, some students of AIM social work will have prior experience of social work. Yes, some AIM social work will not have prior the whole time. Good yes, just about now and the what is the put for after. Okay, after. This after work. Okay. So please yourself which body that body TDS TDS. Okay, okay, but over here. They should be doing minus school as they have 67. No? They have sharp. What is embedded? Hmm? There was a spurt in criminal activity in the city during the recent festival season. The police shooting was the cause of this increase. For the future, the police should take adequate preventive to avoid any of such incidents as well as the no one would be arrested before any such only one and thing. Environment they should be wherever not one square triangle cube rectangle cube cube is 3D square triangle table is 2D. Okay, for the minute again. Okay, you are no, you are
Hmm. Two which are identical, which two are same. अच्छा. Sufficiency balance. A number of multiple question at how many such letters are there? Each of which is indicated by a symbol. Symbol letter need to followed by a number. Symbol letter number. A number where number number and number number symbol letter number. Same. At the point A start from point A to the point is start कर दिया. Okay, enter the payment towards north. 15 kilometer towards north. Then it is right. That's 5 kilometer, 5 kilometer. And turns right and tries 20 kilometer after 20 kilometer. 20 kilometer. He then takes a right turn. Right turn and tries 10 kilometer. Right 10 kilometer. He takes final right turn and tries 5 kilometer. Tries 5 kilometer. And stops at point B. How far and to what food station should we drive in order to reach point A from point B? Have a 5 kilometer right turn over. 5 kilometer to the east. The prices of fruits have dropped substantially during the last few days. The prices of food grains have increased substantially during the last few days. Dictionary. Pinch answer. P65. Chalo. Some mangoes are oranges. Some mangoes are oranges. Some oranges are just some oranges are grapes. Because some mangoes are just some mangoes are grapes and now no oranges और mangoes का ऐसा नहीं बता सकते. No grape is badminton. Boys and badminton. Indian. Boys and badminton मिल गया. Badminton not tennis. 11. 11.
Only four people live below the floor. Only four people live and they can probably below the floor in which they live. Only two people live below C. Only two people live below C. B lives on the lowermost floor. B lives on the lowermost floor. E lives immediately above B. E lives immediately above B. A lives on the A lives on one of the floors above it. A lives on one of the floors above it. If, but A A on the floors below G. Below G. Okay. Who lives on the floor number 4? F. X. And this is the part chart chart nine. Four by take to 6. Okay. And 2, 3, 4, 5, 6, P dash P dash F dash R S P dash F P dash F I R dash Y R dash L F I dash P S L I P S L I P S L I P S L I P S L I L S T R S. Last is P R S. Last is P R S. Is P R S. P S L I P S L I L S P R S. 9 sitting in a straight line. 8 people. Okay. Is it not? Only 3 people sit to the. Okay. 8 people and something. Chapa church. Okay. Only 3 people sit to the right of A. Okay. Sit to the right of A. Only one person sits between A and B. Only one person sits between A. Only 4 people sit between B and D. Only 4 people sit between B and D. D only 4 people sit between A sits to the immediate right of D. DC is neither an immediate neighbor of B or D. B के neighbor भी नहीं है, D के neighbor भी नहीं है. C is minus the C. Then the E sits second to the right of G. E sits to the right of G. E sits second to the right. We have a considered H and A. तो H होगा यहाँ पे. H और A के बीच में 1 2 3 3. So basically, चलो क्या then the in standing one behind the other in ascending one of the high. Okay, I will and doing chart by chart. Then the who's standing behind us.
Okay. Okay, so Q is the tallest. Q is the tallest. Yes, and P is standing right in front of you. P is standing right in front of you. P. One is not appearing. P is standing behind T. T. T is standing behind S. रियल डी फैक्टो हेड होता है, हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है। उसी तरह यहाँ पे भी है, गवर्नर हेड ऑफ स्टेट होगा, वो जो यूपीएमपी वाला स्टेट होता है, हेड ऑफ स्टेट होगा, टाइटलर हेड होगा, नॉमिनल हेड होगा, डी ज्यूरे हेड होगा, और डी फैक्टो हेड कौन होगा? चीफ मिनिस्टर। बस सिंपल, आपको कुछ नहीं करना है। प्रेसिडेंट को कंपेयर कर लो गवर्नर से, सीएम को कंपेयर, पीएम को कंपेयर कर लो सीएम से। जैसे वहाँ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर था तो यहाँ पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है। और जैसे वहाँ पे अटॉर्नी जनरल था, अटॉर्नी जनरल, तो यहाँ पे कौन होगा? यहाँ पे एडवोकेट जनरल होगा। और और कोई है कंपेयर करने के लिए? और तो कोई नहीं मुझे समझ याद आ रहा है। तो प्रेस, और जैसे वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट पढ़ते हैं पार्ट 5 में, तो अभी यहाँ पे हाई कोर्ट पढ़ लेते हैं आके, ठीक है? तो हाई कोर्ट स्टार्ट करते हैं। तो हाई कोर्ट कहाँ से कहाँ तक है? 214 से 231, बस ये लास्ट है। पार्ट 5 और पार्ट 6 पूरी तरह से समझ गया आपका। पार्ट 5 तो समझ गया, अब पार्ट 6 में किसी को दिक्कत हो तो बता सकता है, ठीक है? 89 स्टार्ट कहाँ से करें, ये अच्छा क्वेश्चन है, सॉरी। तो स्टार्ट कहाँ से करना है? ये आप स्टार्ट कर सकते हैं आर्टिकल नंबर 74 से। करते रहिए करते रहिए करते रहिए 110 तक, देन आप 1111 तक करते रहिए। 112 पे जैसे हैं, इसके आगे जब गाड़ी बढ़ाएंगे 123 तक, तो 90 ऐड करते रहिएगा। बस एक्सेप्शंस मैंने तुम्हें बता दिए हैं,
क्या एक तो आर्टिकल 82 वाला डिलिमिटेशन समझ में आया, लेजिस्लेटिव काउंसिल का पूरा वो सब दिया हुआ है, ठीक है। तो वो और दूसरा कि जो ऑफिसर यहाँ पे राज्यसभा के पहले दिए हुए हैं, देन लोकसभा के ऑफिसर दिए हुए हैं, यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली के पहले ऑफिसर दिए हुए हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो जब ऐड करोगे यहाँ पे 89 राज्यसभा वाले में, तो लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर के बारे में तुम्हें पता चलेगा, और यहाँ पे वही, ठीक है। ये बस है, नहीं तो और हर जगह वैलिड रहेगा, ठीक है। अब आते हैं हाई कोर्ट के आर्टिकल, ये भी पार्ट 6 में आएगा, क्योंकि स्टेट की हर चीज़ पार्ट 6 में आएगी। 214 से लेकर 231, सो इतने आर्टिकल हमारे तो दिमाग भेजा बनाया जा रहा है आर्टिकल याद करके। इसमें आर्टिकल मैं आपको याद नहीं करूँगा, चिंता मत करो। पहला वाला तो बस ये, लेकिन ये जो पूरा ब्रैकेट है वो तो तुम्हें पता ही होना चाहिए कि 124 से 147 सुप्रीम कोर्ट दिया हुआ है। सो दैट अगर मान लो आर्टिकल एग्जैक्ट याद नहीं भी आता है, और अगर इस ब्रैकेट का कोई आर्टिकल नहीं होता है, तो आप ऑप्शनल एलिमिनेशन वहाँ पे कर पाओगे, ठीक है। तो 214 से लेके 231। अब हमें क्या क्या करना, पहला है हाई कोर्ट होना चाहिए हर स्टेट में। हाई कोर्ट टू बी अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। कौन सा आर्टिकल था जो बोला था सुप्रीम कोर्ट शुड बी अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड? 129 कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, याद करो, जो दिया जा रहा था वहाँ पे, अगर जो कंटेम्प्ट कर रहा था, ठीक है। अब यहाँ पे 214 में अगर हम एक तरह से देखें तो देयर शैल बी हाई कोर्ट इन ईच स्टेट। भारत के हर राज्य में एक हाई कोर्ट होना चाहिए, ठीक है। एक हाई कोर्ट होना चाहिए हर राज्य में। लेकिन ये आर्टिकल बोलता है कि एक हाई कोर्ट, दो या दो से ज़्यादा हाई कोर्ट के लिए हाई कोर्ट हो सकता है। वो मतलब कुछ ऐसा ही, मतलब इसमें यहाँ पे भी लिखा हुआ है 153 जो आर्टिकल है ना, इसमें ये लिखा हुआ है, आगे लाइन लिखी हुई है कि देयर कैन बी अ कॉमन गवर्नर फॉर 2 और मोर स्टेट्स। दो या दो से ज़्यादा राज्यों के लिए कॉमन गवर्नर हो सकता है। जैसे मान लेते हैं 2 राज्य हैं, यूपी एमपी हैं, तो अगर इनका कोई कॉमन गवर्नर रखना हो तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है कॉमन गवर्नर। ये चीज़ को 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से जोड़ा गया था। जो 7वां संविधान संशोधन हुआ था उसी ने ही बोला था, ये 1956 में हुआ था, कि कॉमन गवर्नर हो सकता है, ठीक, और कॉमन हाई कोर्ट हो सकता है। इसी अमेंडमेंट ने ही इस चीज़ को ऐड किया था, ठीक है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि रुक जाओ, देखो मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अब शुरू है, बस इसके बाद खत्म ही है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे हमारा ये क्या है, लक्षद्वीप, इसका हाई कोर्ट यहाँ लगता है, तिरुवनंतपुरम केरल में लगता है। ये है अंडमान निकोबार, इसका हाई कोर्ट मद्रास हाई कोर्ट में नहीं लगता है, ध्यान रखना। इसका हाई कोर्ट ऊपर लगता है यहाँ पे, वेस्ट बंगाल के हाई कोर्ट में। ऐसे ही महाराष्ट्र और गोवा का कॉमन हाई कोर्ट है, महाराष्ट्र और गोवा का कॉमन हाई कोर्ट है। कहाँ पे? महाराष्ट्र में हाई कोर्ट लगता है, मुंबई हाई कोर्ट। गोवा का भी वहीं लगता है, महाराष्ट्र का भी वहीं लगता है, और यहाँ तक कि दादरा नगर हवेली, दमन और दीव का भी यहीं लगता है, समझ जाए। तो कॉमन हाई कोर्ट हो सकता है। और वो जो मान लेते हैं सर, मान लेते हैं हम लोग, मान लेते हैं जैसे कि राज्यपाल जी हैं हमारे, ठीक है, 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट को अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, उनको सबको प्लेजर दे रहे हैं। तो कौन सा स्टेट कितनी सैलरी देगा गवर्नर को, ये कहाँ पे लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है 158 में। इस पर भी सवाल बना है अभी, इसलिए बता रहा हूँ इतना स्पेसिफाई करके। 158 में क्या कंडीशन लिखा हुआ है, इसी में ही लिखा गया है। 158 की अगर बात करूँ, 158 का जो 158 का जो क्लॉज नंबर 3 है, इसमें ये लिखा हुआ है कि कितना, इसमें पहली बात तो ये लिखा हुआ है कि कितना अलाउंस या फिर सैलरी, कितना एमोल्यूमेंट मिलेगा गवर्नर को, ये पार्लियामेंट डिसाइड करेगा। लेकिन अगर वो कॉमन गवर्नर है 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट का, तो कौन सा राज्य कितना सैलरी देगा उसको, ठीक है, कितना सैलरी डिवाइड होगा। 1 लाख सैलरी है तो मान लेते हैं यूपी और बिहार का गवर्नर कॉमन, तो 60,000 यूपी देगा, 40,000 वो देगा, फिर 70,000 यूपी देगा। ये कौन डिसाइड करेगा? ये प्रेसिडेंट डिसाइड करेगा। ध्यान रखना, उसकी सैलरी कितनी होगी, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, वो पार्लियामेंट डिसाइड करेगा। लेकिन कौन सा स्टेट कितना देगा अगर वो कॉमन है, तो वो प्रेसिडेंट डिसाइड करेगा, ठीक है। ये 3A मतलब 158 क्लॉज 3 और सब क्लॉज A में लिखा हुआ है, ठीक है। ये कौन डिवाइड करता है? प्रेसिडेंट। ध्यान रखना इसको, क्लियर है ये चीज़। बाकी तो यहाँ पे है हाई कोर्ट टू बी अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, ये याद कर लो, ठीक है। और ओथ कौन दिलाता है इनको? ओथ कौन दिलाएगा? अपॉइंटमेंट हाई कोर्ट जजेस की, ध्यान रखना। यहाँ पे एक सेकंड रुको, कुछ चीज़ें तो ऐड करनी पड़ेंगी। ये चीज़ ध्यान रखना, जो हाई कोर्ट के जजेस होते हैं इनकी अपॉइंटमेंट, कुछ ही चीज़ें हमें पढ़नी है, सारी चीज़ें नहीं। इनकी अपॉइंटमेंट कौन करता है? प्रेसिडेंट ही करेगा, राष्ट्रपति। लेकिन इनको ओथ कौन दिलाएगा? शपथ। ये शपथ दिलाएगा राज्यपाल। इनको अपॉइंट करेगा प्रेसिडेंट, इनको रिमूव करेगा प्रेसिडेंट। अगर इनको रेजिग्नेशन देना होगा अपना, यानी इनको अगर इस्तीफा देना है तो देंगे प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंट अपॉइंट कर रहा है, वही रिमूव कर रहा है, उसी को रेजिग्नेशन दे रहे हैं। लेकिन जो फर्जी का काम है वो तो दिलाना, ये सब प्रेसिडेंट बोलता है तुम करो, किस दिन के लिए तुमको अपॉइंट करा। शपथ भी दिलाने हमको आना पड़ेगा क्या स्टेट में? तुम दिला देना इनको, तो तुमको वो दिला देंगे चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के। तो ऐसा आपस में जो है कर लेना, ठीक। अब जब इनकी अपॉइंटमेंट होती है ना, चाहे हाई कोर्ट के जजेस हो या सुप्रीम कोर्ट के, प्रेसिडेंट ऐसा नहीं कि जो मनाया अपने हिसाब से कर दिया उसने ना। यहाँ काम करता है कोलेजियम ऑफ जजेस। अगर पूछ ले कोलेजियम क्या होता है, कोलेजियम होता है एक जजेस का समूह, ग्रुप ऑफ जजेस। तो जब प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में जजेस की अपॉइंटमेंट करता है, हाई कोर्ट, एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में ट्रांसफर करता है जजेस की, तो ऐसा नहीं अपने मन से नहीं करता, वो कुछ जजेस की एडवाइस लेकर करता है, और उन जजेस को बोलते हैं कॉलेजियम, ठीक है। एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में जब ट्रांसफर करना है तो वहाँ पर वो गवर्नर की भी एडवाइस ले लेता है प्रेसिडेंट की। अब हुआ क्या था, कई सारे केसेस हुए थे। फर्स्ट जजेस केस, सेकंड जजेस केस, ऐसे जजेस केस हुए थे जिनको एसपी गुप्ता केस बोलते हैं। एसपी गुप्ता केस भी फर्स्ट जजेस केस को बोला जाता है। थर्ड जजेस केस, फोर्थ जजेस केस, ऐसे जजेस केस हुए थे। पहले जजेस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि प्रेसिडेंट को सीजेआई से एडवाइस लेनी पड़ेगी, अपने हिसाब से मत अपॉइंट करते हैं, लेकिन वो एडवाइस बाइंडिंग नहीं है प्रेसिडेंट पे। सेकंड जजेस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला सुनो, ये प्रेसिडेंट जब तुम सीजेआई से एडवाइस लोगे ना, तो सीजेआई से बोल देना वो 2 और से एडवाइस ले, कोई जजेस से, अपने आप से ना दे, और वो जो एडवाइस देगा तुमको बाइंडिंग ऐप से, तुम ध्यान से सुन लो उसको। थर्ड ने बोला सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंट से, प्रेसिडेंट सुनो ध्यान से, जब तुम ये सब करोगे ना तो सीजेआई से एडवाइस लेना। सीजेआई से बोला 2 नहीं 4 लोगों से एडवाइस ले। अब पार्लियामेंट दिमाग खराब हो गया, पार्लियामेंट चाहती है कि उसके हाथ पावर है, तो पार्लियामेंट ने क्या किया, एक 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर डाला और उससे कॉलेजियम को ही खत्म कर दिया। ये जो ग्रुप ऑफ जजेस, ये जो बनना है ना सीजीआई प्लस 4 अदर जजेस, यही है कॉलेजियम। 99th अमेंडमेंट ने खत्म कर दिया और उसकी जगह एक एनजेएसी लिया, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। पार्लियामेंट बोला ये कैसा काम भैया है कि मतलब ये तो पहली बार ऐसा हो रहा है
कि जो जिसको अपॉइंट कर रहा है मतलब कोई खुद ही को अपॉइंट कर रहा है। अब भाई यहाँ पे अपॉइंटमेंट किसकी हो रही है? जजेस की। रिकमेंडेशन भी किसके लिए रहा है? प्रेसिडेंट जजेस की ही ले रहा है रिकमेंडेशन। मतलब ये लोग खुद ही को ही अपॉइंट कर रहे हैं सीजे और जजेस। तो पार्लियामेंट ने बोला गलत है, ये रॉन्ग नंबर है। तो उसने बोला एनजेएसी राइट नंबर है, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। फिर पार्लियामेंट बोलता, सुप्रीम कोर्ट बोलता है एक और जज केस ले लो, फोर्थ जज केस ले लो, और इस फोर्थ जज केस में 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को हम अनकॉन्स्टिट्यूशनल यानी असंवैधानिक घोषित करते हैं, और तो मैं एनजेएसी को लात मारते हैं और कॉलेजियम को फिर से रिस्टोर करते हैं। तो आज तक कॉलेजियम चले आ रहा है और आज भी टसल चलता रहता है इस चीज़ को लेकर कि अपॉइंटमेंट में सरकार का होना चाहिए। तो सरकार क्यों चाहती है? क्योंकि सरकार चाहती है हमारे मन मुताबिक जज बैठे वहाँ पे। तो फिर जुडिशरी बोलती है फिर हमारी इंडिपेंडेंस खत्म हो जाएगी। बात भी सही है। खैर ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। हाई कोर्ट जजेस के लिए क्या क्वालिफिकेशन होता है? हाई कोर्ट का जज के लिए क्या क्वालिफिकेशन होता है? क्वालिफिकेशन ये होता है कि जैसे सुप्रीम कोर्ट जज के लिए क्या होता है, 5-10 साल या तो तुम हाई कोर्ट में एडवोकेट रहे हो, 10 ईयर्स अगर हाई कोर्ट में एडवोकेट रहे हो या फिर कोई भी तुमने, ठीक है, जुडिशियल ऑफिस इस तरह से हेल्प किया तो 10 साल तक अगर आप हाई कोर्ट रहे हो तो जज बन सकते हो। या फिर तुम इसमें ये मत लिख देना 5 साल तक हाई कोर्ट में जज रहे हो। भैया हाई कोर्ट जज की क्वालिफिकेशन बात हो रही है, ठीक है, थोड़ा सा लॉजिक लगाना, ठीक है। ये या फिर 10 साल तक कोई भी जुडिशियल ऑफिस होल्ड किया तो आप एलिजिबल हैं। राष्ट्रपति की नज़रों में आप डिस्टिंग्विश जुरिस्ट हैं तो यहाँ पे कोई कुछ नहीं चलेगा ना। राष्ट्रपति की नज़रों में डिस्टिंग्विश जुरिस्ट हैं तो सुप्रीम कोर्ट के लिए एलिजिबल हैं आप, हाई कोर्ट के लिए नहीं। हाई कोर्ट के लिए तो सिर्फ 10 साल का एडवोकेट या फिर कोई भी जुडिशियल ऑफिस आपने होल्ड किया हो। एज, मिनिमम एज कुछ नहीं होती है ना तो सुप्रीम कोर्ट के ना तो हाई कोर्ट में। यहाँ पे मैक्सिमम एज का कॉन्सेप्ट चलता है। सुप्रीम कोर्ट में 65 साल और हाई कोर्ट में है 62 साल। मिनिमम नहीं मैक्सिमम चलता है यहाँ पे, ठीक। और 2 to 6 अभी पढ़ाएंगे आगे, ठीक है, फंडामेंटल राइट वाले में। बस अब आ जाते हैं मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। पूरा संविधान पढ़ने के बाद संविधान को बना लेते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए भाई, मैक्सिमम होता है एक घूंट पानी पी के मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट करते हैं, बस खत्म है। फंडामेंटल राइट है, उसके बाद डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटी, और उसके बाद आता है पार्ट 5 जो खत्म कर चुके हैं, उसके बाद पार्ट 7 जो खत्म कर चुके हैं। बचा क्या? तो इसलिए बहुत ही कम मतलब टाइम आपका हो जाने वाला है, ठीक है। मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कौन बनाता है? संविधान को। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाती है, संविधान सभा बनाती है संविधान को। ये बात सबसे पहले किसने बोली थी कि भारत का संविधान एक संविधान सभा बनाएगी और वो इंडिपेंडेंट होगी टू टेक इट्स डिसीजंस और अपने संविधान बनाने के लिए। तो ये चीज़ ध्यान रखना, जवाहरलाल नेहरू ने बोला था इस बात को पहले। कर्रे से एक बात जो मैं बोलता हूँ ना तो उसको ध्यान से समझ सुन लिया करो अच्छे से, पूछा जा सकता है क्वेश्चन। जवाहरलाल नेहरू ने बोला था कि एक तरह से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बननी चाहिए जो इंडिपेंडेंट हो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए, उसमें आउटसाइड इंटरफेरेंस ना हो। लेकिन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मांग जो है सबसे पहले ये एम.एन. रॉय जी ने रखी थी, मनीन्द्र नाथ रॉय, जो कि सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के फाउंडर थे। कब बनी थी जरा बताना, एम.एन. रॉय ने कब बनी थी सीपीआई? 1934 और 1935 में कांग्रेस ने ऑफिशियली डिमांड किया था इस चीज़ को। और ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी ये बनी थी कैबिनेट मिशन प्लान के तहत, ठीक है, कैबिनेट मिशन प्लान। ये कैबिनेट मिशन जो है एक मिशन था, 3 लोग थे इसमें, पैथिक लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। ये 3 लोग थे इसमें, और इसमें चेयरमैन कौन थे? पैथिक लॉरेंस। आया कब था ये? 1946 में। उसके हिसाब से इसके इलेक्शंस करवाए गए थे जो उसमें प्रोविजंस दिए गए थे कैबिनेट मिशन में, और तब इसको बनाया गया था, ठीक है। कुछ क्वेश्चन पूछा था मैंने क्या? हाँ, एम.एन. रॉय ने कब बनाया था? 1920 में बनाया था, ताशकंद उज़्बेकिस्तान में। फॉर्मलाइज 1924 में किया था कानपुर में, ठीक है। अभी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनती है इसमें टोटल कितने मेंबर होने थे? ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना है। 389 होने थे, 296 आने थे ब्रिटिश इंडिया से और 93 आने थे प्रिंसली स्टेट से, ठीक है। 293 कहाँ से आने थे? 296 आने थे ब्रिटिश इंडिया से और 93 आने थे प्रिंसली स्टेट से। प्रिंसली स्टेट, ये प्रिंसली स्टेट्स की अगर बात करें तो ये क्या है ब्रिटिश इंडिया और प्रिंसली स्टेट में डिफरेंस? तो ब्रिटिश इंडिया का मतलब है कि जहाँ पे ब्रिटिशर्स का डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मतलब डायरेक्टली कंट्रोल था डायरेक्टली, और प्रिंसली स्टेट जहाँ पे इनडायरेक्टली कंट्रोल था वो राजे रजवाड़े, जहाँ पे राजाओं का रूल अभी भी चल रहा था लेकिन ब्रिटिशर्स के नाम पे रूल कर रहे थे वो। तो ये बोला गया था कि 296 लोग यहाँ से आएंगे, इनडायरेक्टली इलेक्ट होकर आएंगे ये, ठीक है। मतलब लोग डायरेक्टली वोट नहीं करेंगे, जो उनके द्वारा चुने गए असेंबलीज में वो लोग चुनेंगे, ठीक है, डायरेक्टली इलेक्टेड। और प्रिंसली स्टेट के जो राजा लोग हैं वो नॉमिनेट कर देंगे, नॉमिनेट होकर आएंगे, ठीक। इलेक्शंस हुए, ठीक है, इलेक्शंस हुए, देन इलेक्शन के बाद अब यहाँ पे हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी। इसके बीच में ध्यान रखिएगा कि इंतरिम सरकार भी बनाई जाती है। इंतरिम सरकार क्या होती है? इंतरिम गवर्नमेंट क्या होती है? तो इंतरिम गवर्नमेंट बनाई गई थी, इंतरिम गवर्नमेंट बनाई गई थी इसलिए सो दैट एक स्मूथ ट्रांसफर ऑफ पावर किया जा सके, क्योंकि आपको पता है ब्रिटिशर्स अब यहाँ से छोड़ के जाने वाले थे। अब जब ब्रिटिशर्स यहाँ पे छोड़ के जाने वाले थे तो उन्होंने एक इंतरिम सरकार बना दी कि भाई हम किस तरह से छोड़ के जाएंगे तो आपको ट्रांसफर करेंगे पावर, उसके बीच में एक इंतरिम गवर्नमेंट बना देते हैं जब तक आपकी परमानेंट गवर्नमेंट नहीं बन जाती है। तो इसको बनाया गया था 2 सितंबर 1946 को। इसमें इंतरिम गवर्नमेंट के जो प्रेसिडेंट थे वो माउंट बैटन था और जो वाइस प्रेसिडेंट थे वो नेहरू जी थे। नेहरू जी ही उसमें एक्सटर्नल अफेयर्स की मिनिस्ट्री होल्ड कर रहे थे। कॉमनवेल्थ मिनिस्टर भी यही थे, कॉमनवेल्थ मिनिस्टर भी यही थे, ठीक। होम मिनिस्टर सरदार पटेल, डिफेंस मिनिस्टर बलदेव सिंह, ठीक है। और फाइनेंस मिनिस्टर कौन था? ये मुस्लिम लीग का था फाइनेंस मिनिस्टर, लियाकत अली खान, जो यहाँ का पहला प्राइम मिनिस्टर था पाकिस्तान का, लियाकत अली खान। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है इंतरिम सरकार के बारे में थोड़ी सी। तो ये चीज़ है जो मतलब बीच में सरकार टाइप बन गई थी एक छोटी सी इंतरिम सरकार। लेकिन खैर बैक टू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो संविधान सभा जो है अब यहाँ पे बैठती है। संविधान सभा का जो पहला सेशन होता है, फर्स्ट जो सेशन होता है, फर्स्ट मीटिंग होता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, वो 9 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1946 को होता है। यहाँ पे जो इसके सबसे पूर्वज या फिर हम बोले सबसे जो बड़े इसके सदस्य थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, वो सच्चिदानंद सिन्हा थे। तो उनको बोला गया कि आप जो है टेम्प्रेरी तौर से यानी अस्थायी तौर से चेयरमैन बन जाइए, टेम्प्रेरी जो है चेयरमैन बन जाइए, किसके? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के टेम्प्रेरी चेयरमैन बन जाइए, ठीक है, सच्चिदानंद सिन्हा। देन फिर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अपना एक परमानेंट अपना चुन लिया क्या? चेयरमैन, ठीक है। और वो किसको चुना? परमानेंट चुना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को।
और वो पार्लियामेंट्री कमेटी वाला मुझे याद दिलाना लास्ट में, मुझे आपको लास्ट में बताना है, ठीक है। 3 कमेटीज़ हैं बस वो, ठीक। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर, संवैधानिक सलाहकार। कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर किसको बनाया गया, संवैधानिक सलाहकार? सर BN राव, बेनेगल नरसिंह राव को। ये कुछ फैक्ट्स हैं तो ध्यान रखना है, कॉन्स्टिट्यूशनल या फिर लीगल एडवाइजर, कोई बात सेम है, ठीक। वाइस प्रेसिडेंट यूजुअली पूछता नहीं है, लेकिन अगर पूछ ले तो ऐसे याद करो, HC और VT, HC और VT, HC मुखर्जी और VT कृष्णमाचारी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक। अब फीचर्स बड़ी जल्दी जल्दी आ रहा है ये सब, यही तो दिक्कत है, सब काम बड़े धीरे धीरे हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे भी आते हैं इस पर, तो ये हो गया हमारा, ठीक है। अब होता क्या है कि 4 दिन बाद ही 13 दिसंबर 1946, 13 दिसंबर 1946 को नेहरू जी क्या करते हैं, नेहरू जी एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को पास करवा लेते हैं। उद्देश्य प्रस्ताव को पास नहीं करवा लेते हैं, प्रेजेंट करते हैं। ये बोलते हैं कि देखो, ये हम जब अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाने जा रहे हैं तो हम लोगों को ये चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए, जब अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाएं तो ये चीज़ें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में होनी चाहिए, हमारे संविधान में होनी चाहिए। तो एक लेखा जोखा तो नहीं बोलेंगे, लेकिन एक ग्लिम्स एक तरह से, मतलब हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में बनाते हैं किन चीज़ों का ध्यान रखना है। प्रियम्बल तो सुना ही हो गया, जिसको समरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, बस वही था ये, ठीक है। तो वही है ये। देन इसको 22 जनवरी 1947 को हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अडॉप्ट कर लेती है, ठीक है। अडॉप्टेड बाई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक। अब संविधान बनना चालू होता है, काम को कमिटीज़ में, समितियों में विभाजित कर दिया जाता है। तो टोटल हमारी 8 मेजर कमिटीज़ और कुछ 13 से 14 माइनर कमिटीज़ बनती हैं। अब इन कमिटी से कभी कभी चेयरमैन पूछ लेता है आपसे, जैसे कि अब हमें सब नहीं रखनी है, जो मैं आपको याद कर रहा हूँ सिर्फ वही, जिस भी कमिटी के नाम के आगे यूनियन होगा उसके चेयरमैन नेहरू होंगे, या फिर अगर यूनियन का उल्टा क्या होता है, स्टेट होता है, तो अगर स्टेट भी होगा तो भी नेहरू ही होंगे, ठीक। ये भी क्लियर हो गया। जो हमारे प्रांत थे, जो प्रोविंसेस थे, ठीक है, प्रांत थे, प्रोविंसेस थे, जैसे जो प्रिंसली स्टेट थे, उनको भारत में किसी ने मर्ज करने, किसको क्रेडिट दिया जाता है अखंडता का, भारत को अखंडता का क्रेडिट किसको दिया जाता है? पटेल जी को, सरदार पटेल जी को, इसलिए इनको फादर ऑफ इंडियन यूनिटी बोलते हैं। 31 अक्टूबर को हम यूनिटी डे सेलिब्रेट करते हैं। तो उन्होंने ऐसे तो प्रिंसली स्टेट को मर्ज किया भारत में, तो प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी की है। और ड्राफ्टिंग कमेटी तो कहने ही क्या, सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी थी ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसको प्रारूप या मसौदा समिति बोलते हैं। अंबेडकर जी इसके चेयरमैन थे। इसमें टोटल 7 मेंबर्स थे, 7 सदस्य थे, ठीक है, 7 सदस्य थे इसमें, जिसके चेयरमैन अंबेडकर जी थे। क्लियर हो गई थी चीज़। और क्या यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा, और एक तो ये, मतलब ये सब याद हो गए, 5-6 कमिटीज आपको याद हो गई। अब माइनर कमिटीज कुछ देख लेते हैं। तो राजेंद्र प्रसाद हमारे हेड थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, यानी कि सबसे बड़े मुखिया थे, ठीक है, हेड थे। तो जो मुखिया होता है वही फाइनेंस संभालता है। मुंशी जी का काम क्या होता है, मुंशी जी का लेखा जोखा काम होता है, बिजनेस संभालते हैं मुंशी जी, ठीक है। मुंशी जी इस जो ड्राफ्टिंग कमेटी उसके भी एक मेंबर थे हमारे, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना। और तो बाकी आप SK धार लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस कमीशन, ये अपने आप याद हो जाएगा, अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा। एक लिंग्विस्टिक जो हम लोग कमीशन देखेंगे, लिंग्विस्टिक कमीशन, तो वहाँ पे आपको SK धार भी याद हो जाने वाला है, ठीक है। मेरे हिसाब से इतना याद कर लीजिए, और तो इसमें कोई नहीं है, इतना याद कर लीजिए, इतना काफ़ी है, ठीक है, इतना काफ़ी मेरे हिसाब से, ठीक है। याद करने तो और बहुत सारे हैं, अगर आपको याद करना हो तो फंडामेंटल राइट्स सब कमेटी, और एक और, हाँ कहाँ गया वो, पट्टा भी सीता रमैया वाला, ये देखो हाउस कमेटी, ठीक है। एक मूवी आई थी ना, रमैया बस्ता भैया, उसमें सब घर बार दिखाया गया था कि है ना, और एक लड़की थी, लड़का था, वो हमारा छेदी सिंह था उसमें। तो इस तरह से घर का ही पूरा दिखाया गया था उसमें। तो हाउस कमेटी, पट्टा भी सीता रमैया बस्ता भैया से करके याद कर सकते हैं बस, ठीक है। और ये एक और याद कर लो, रूल्स ऑफ प्रोसीजर। तो भाई जो घर का सबसे बड़ा होगा वही फाइनेंस देखेगा, वही पूरे घर के प्रोसीजर वगैरह भी बनाता है, तो राजेंद्र प्रसाद जी। और माइनर कमेटी भी एक लीड कर रहे थे, फ्लैग एडहॉक फ्लैग कमेटी होगी, यहाँ पे लिखी होगी, नहीं लिखी क्या, चलो नहीं लिखिए, ये लिखिए एडहॉक कमेटी और नेशनल फ्लैग, ये राजेंद्र प्रसाद जी, ठीक है। बाकी ड्राफ्टिंग कमेटी के बारे में कभी पूछ लेता है, जैसे मसौदा समिति हमारी ड्राफ्टिंग कमेटी, कि ड्राफ्टिंग कमेटी की पहला सेशन कब हुआ था, तो ये ध्यान रखना 9 दिसंबर, ठीक है, 1946 को ही हुआ था ये, ठीक है, पहला वो ध्यान रखना। और बस, और तो कुछ नहीं है, ठीक है। और बस, और तो कुछ आई थिंक इसमें ज़्यादा है नहीं, ठीक है। चलो सर, वो किसने लिखा था, कितने टाइम लगा था, बता रहे हैं भाई, इतना भी जल्दी मत करो, ठीक है। तो ये हमारा क्लियर हो गया, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कब अडॉप्ट किया गया, ठीक है, वो क्या था करेगा। अब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बनना स्टार्ट हुआ, कितने सेशंस लगे, तो टोटल 11 सेशंस लगे, 11 सेशंस लगे कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में। तो टोटल 2 साल 11 महीने और 18 दिन का टाइम लगा, ठीक है। 2 साल 11 महीने 18 दिन का टाइम लगा, 18 दिन का टाइम लगा इसको बनने का। मैं 160 कुछ लिख रहा था ना, एक्चुअली में जो 11 सेशंस हुए थे ना, ये टोटल 165 दिन चले थे। ये जो 11 सेशन हुए टोटल 165 दिन चले थे, ठीक है। तो ये टोटल 11 सेशन हुए थे, इतना टाइम टोटल जो है कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में लगा था। जो कॉन्स्टिट्यूशन को कैलीग्राफी किया था, कैलीग्राफी किसने करी थी, ये करा था प्रेम बिहारी, ठीक है, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जी ने। ये इंग्लिश में लिखा था। हिंदी में किसने करी थी कैलीग्राफी, वसंत कुमार वैद्य, वसंत कुमार वैद्य, हिंदी में लिखा था। डेकोरेट किसने किया था, डेकोरेट ये किया था नंदलाल बोस, नंदलाल बोस। सिंबल क्या था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, हाथी मेरा साथी, दैट इज एलिफेंट था। कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार कब हुआ, यानी कि हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को कब अडॉप्ट किया और लागू कब किया एनफोर्स और अडॉप्ट। तो अडॉप्ट तो हमने कर लिया था 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को, और लागू किया था 26 जनवरी 1950 को, यानी 2 महीने बाद, क्योंकि इसी दिन हमने अपना पहला पूर्ण स्वराज डे जो है सेलिब्रेट किया था, इसलिए मतलब पहला इंडिपेंडेंस डे हमने सेलिब्रेट किया था। इसलिए हमारी जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी, उसने सिर्फ संविधान बनाने का ही काम नहीं किया, तो फिर और क्या काम किया हमारी संविधान की सभा ने। उसने नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट किया, जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है उसको, नेशनल एंथम को अडॉप्ट किया, ठीक है, नेशनल सॉन्ग को अडॉप्ट किया। उसने कॉमनवेल्थ की मेंबरशिप को रेटिफाई किया। कॉमनवेल्थ जो आज हम गेम्स खेलते हैं, कॉमनवेल्थ कंट्रीज कौन सी होती हैं, जो ब्रिटिश के रूल में कभी ना कभी रही थी, और ठीक है। तो ये चीज़, तो नेशनल फ्लैग कब अडॉप्ट किया, तो ये हमने अडॉप्ट किया था 22
जुलाई 1947। एंथम और सॉन्ग को कब अडॉप्ट किया? 24 जनवरी 1950। इसी दिन ही हमने राजेंद्र प्रसाद को, हमने मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली राजेंद्र प्रसाद को पहला राष्ट्रपति घोषित किया। कॉमनवेल्थ मई 1949। क्लियर होती थी बात? मई 1949। और इसके अलावा कानून भी बना है, लॉ मेकिंग बॉडी के तौर पे भी फंक्शन करती थी हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, लेकिन तब इसके हेड जीवी मावलंकर होते थे, जो लोकसभा के पहले स्पीकर थे। जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए बैठी थी तो राजेंद्र प्रसाद हेड होते थे, जब कानून बनाने के लिए बैठते थे तो जीवी मावलंकर जी हेड होते थे। ठीक है, एक चीज़ कि हमारा जब संविधान हमने अडॉप्ट किया था, जिस दिन हम अपना संविधान दिवस मनाते हैं, संविधान हत्या दिवस का मनाते हैं, संविधान दिवस मनाते हैं, उस दिन ही कुछ प्रोविजंस उस दिन ही लागू कर दिए गए थे, जो इलेक्शन से, नागरिकता यानी सिटीजनशिप से रिलेटेड थे, उनको तभी लागू कर दिया गया था, जिनके बिना देश आगे नहीं बढ़ सकता था। और पूरा हमने 26 जनवरी को पूरा लागू किया उस चीज़ को। ठीक है, यहाँ पे हमारा मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होता है खत्म। किसी कोई डाउट? सर क्या चीज़? विमेन टोटल 15 थी और जिन्होंने संविधान में साइन किया वो 8 थी। ठीक है, टोटल 15 विमेन्स थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, जिन्होंने साइन किया था वो 8 थी। चलिए अभी आते हैं फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, देखते हैं जल्दी से। पहला फीचर क्या है? हमारे देश का जो संविधान है, इट इज़ दी लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, सबसे लंबा है, सबसे बड़ा, ये तो बात समझ में आती है। रिटन का मतलब क्या? रिटन का मतलब है जिसको तुरंत अमेंड नहीं किया जा सकता है बहुत जल्दी, और कि उसको कुछ लोग बैठे थे बनाने के लिए। ऐसा नहीं कि कुछ जो हमारे रूल चले आ रहे थे कि हिंदू नियमानुसार या फिर मुस्लिम के शिया अनुसार इस तरह से, और ये इन्हीं कोई नियम मतलब इसी कोई संविधान को बोल दिया गया। जैसे ब्रिटेन की बात करें, जहाँ से हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लिया है, वहाँ का अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, बिकॉज वहाँ पे जो पहले से लॉ एग्जिस्ट कर रहे थे उनको कोडिफाई करके कॉन्स्टिट्यूशन बोल दिया गया। वो लोग कोई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अपनी नहीं बिठाए थे बनाने के लिए। तो इट इज लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। ठीक, दूसरा जो आपको ध्यान रखना है, बताना मत किसी को, ठीक है, दैट इज कि इंडिया में जो फेडरेशन है, इंडिया में फेडरेशन है, लेकिन फेडरेशन वर्ड कहीं पे भी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा है, चीज़ को ध्यान रखना। वो है फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान से समझना इसको। फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर का मतलब क्या? फेडरेशन का मतलब ये होता है सेंटर और स्टेट के बीच में, सेंटर और स्टेट्स के बीच में पावर का इक्वल डिवीजन है। ठीक, लेकिन इंडिया में जो फेडरेशन है उसमें पावर्स का डिवीजन तो है, फेडरेशन तो है, मतलब पावर का डिवीजन तो है, लेकिन सेंटर के पास ज़्यादा पावर है, स्ट्रॉन्ग सेंटर। और ये चीज़ को हम कहाँ से लिए थे? सी से सेंटर, और सी से कौन सा देश आता है जिसको हम खालिस्तान के नाम से भी जानते हैं? बताइए जल्दी से। तो ऐसा हमारे यहाँ पे फेडरेशन है जहाँ पे स्ट्रॉन्ग सेंटर है, केंद्र सरकार के पास ज़्यादा पावर है। ठीक है, ऐसा फेडरेशन हमारे यहाँ पे इंडिया में एग्जिस्ट करता है, जो कि हमने कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। क्वेश्चन इस तरह से बनता है कि कुछ आपको प्रोविजन दे देता है और पूछता है कि ये कैसा प्रोविजन है, फेडरल प्रोविजन है या फिर यूनिटरी प्रोविजन है। मतलब जैसे कि अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर बाई सेंटर इन स्टेट, ठीक, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, ये दोनों यूनिटरी फीचर हैं और ये फेडरल फीचर है। मतलब तुम क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि वो फीचर जो सेंटर को ज़्यादा पावर देता हो, स्टेट से पावर छीनता हो, वो फीचर यूनिटरी फीचर कहलाता है। और जो फीचर स्टेट्स को पावर देता है, उनके पावर को रिस्टोर करता है, दैट इज कॉल्ड एज द फेडरल फीचर। गवर्नर स्टेट का हेड होता है, लेकिन उसकी अपॉइंटमेंट सेंटर कर रहा है, यानी कि सेंटर की ज़्यादा पावर यहाँ पे। तो ये चीज़ भी हमने कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया। ठीक है, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का एक ही संविधान है। इसका उल्टा ये है कि दो संविधान होते हैं, एक तो केंद्र का और एक हर राज्य का अपना अपना। तो वो फेडरल फीचर होता है क्योंकि हर राज्य के पास भी अपना कॉन्स्टिट्यूशन होता है, लेकिन यहाँ पे तो सिंगल ही है, तो यूनिटरी हो गया। रिटन है, रिटन का मतलब ये कि जल्दी से उसको अमेंड नहीं किया जा सकता है। यानी स्टेट के लिए जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर लिख के गए थे कि राज्य को ये करना, राज्य को वो करना, राज्यों के साथ टैक्स का डिस्ट्रीब्यूशन करना, वो सारी चीज़ ऐसे जल्दी समझ नहीं हो सकती, यानी फेडरल फीचर होगा। तो आप समझ पाएंगे कि क्या डिफरेंस होता है। फेडरेशन, जो इंडिया का फेडरेशन है, इस पर कुछ लोगों ने कमेंट्री करी थी। जो इंडिया का फेडरेशन है, इस पर कुछ लोगों की कमेंट्री करी थी, वो कमेंट्री भी हमें पता होनी चाहिए। किसने इंडिया के फेडरेशन को कोऑपरेटिव फेडरलिज्म बोला था? किसने इंडिया के फेडरेशन को क्वाज़ाई फेडरल बोला था? किसने इंडिया के फेडरेशन को बार्गेनिंग फेडरलिज्म बोला था? बार्गेनिंग फेडरलिज्म बोला था किसने? तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की जब हम बात करते हैं तो किसने बोला था? ये बोला था ग्रैनविल ऑस्टिन ने। ग्रैनविल ऑस्टिन। क्वाज़ाई फेडरल केसी वियरे। और बार्गेनिंग फेडरलिज्म, आई थिंक आज के नाश्ता पीडीएफ में भी शायद था क्या? ये आज नहीं था तो आज होगा, नहीं तो फिर कल वाले में देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, मॉरिस जॉन्स। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। अब बढ़ते हैं, ये एक और फीचर है कि बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा जो देश का संविधान है बोरोड है। हमने बोरो कई चीज़ें, क्या क्या बोरो किया? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से सबसे ज़्यादा चीज़ें बोरो करी हैं, यानी कि जो हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन का स्ट्रक्चरल पार्ट है, संरचनात्मक ढांचा है, वो यहीं से बोरो किया। सबसे ज़्यादा चीज़ें 40% ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यहीं से। क्या क्या आता है? फेडरल स्कीम हो गई, ऑफिस ऑफ गवर्नर से अब तो बोले थे कनाडा से लिया है, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर बाई सेंटर बिल्कुल लिया है, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर बाई सेंटर इन स्टेट ये कनाडा से लिया है, लेकिन एक राज्यपाल का पद होगा, ये 1935 एक्ट से लिया। जुडिशरी, पब्लिक सर्विस कमीशन, इमरजेंसी प्रोविजन, एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स, ये सब कहाँ से लिया? 1935 के एक्ट से। ब्रिटेन से हमने क्या लिया है? ब्रिटेन से हमने कॉन्स्टिट्यूशन का पॉलिटिकल पार्ट लिया है, पॉलिटिकल पार्ट। यूएस से फिलोसफिकल पार्ट लिया है। क्या क्या ब्रिटेन से बोलो किया है? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जिसको कि हम वेस्टमिंस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट बोलते हैं। क्यों? मैंने आपको बताया तभी। रूल ऑफ लॉ, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, सिंगल सिटीजनशिप, एकल नागरिकता, कैबिनेट सिस्टम, प्रोरोगेटिव राइट, अभी पढ़ोगे सिंगल सिटीजनशिप, प्रोरोगेटिव राइट, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस और बाइकैमरलिज्म। पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस का मतलब क्या होता है? जो हमारे सांसद लोगों को कुछ विशेष अधिकार मिले हुए हैं कि उन लोगों को जब सत्र चल रहा होगा तो अरेस्ट नहीं किया जा सकता है, ना तो जब चल रहा होगा तब, ना तो उसके 40 दिन पहले, ना तो 40 दिन बाद तक। ये उनको वो मिले हुए हैं कुछ विशेष अधिकार। ऐसे राष्ट्रपति को भी विशेष अधिकार मिले हुए हैं कि उसके खिलाफ कोई क्रिमिनल केस नहीं चलाया जा सकता है उसके ऑफिस के दौरान। सिविल चलाया जा सकता है लेकिन क्रिमिनल नहीं। ठीक है, और यहाँ से एक और नोट करना, और वो है मार्शियल लॉ। ठीक है, मार्शल लॉ। और एक और नोट करना जो मैंने बताया था, क्या लोकसभा का जो इलेक्शन प्रणाली होता है, इलेक्शन प्रोसीजर होता है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम,
वो भी यहीं से लिया। यूएस की जब हम बात करते हैं तो यहाँ से फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार जो पढ़ेंगे, ये पढ़ चुके हैं, ये पढ़ चुके हैं, पढ़ चुके हैं, पढ़ चुके हैं सब कुछ। यानी यूएसए ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट लिए हैं, उनका रिमूवल लिए हैं, और जिस तरह और इसी तरह सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट जजेस का भी रिमूवल लिया। हाईकोर्ट के जजेस का सर रिमूवल तो आपने बताया नहीं है, बिल्कुल सेम, नो डिफरेंस, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट में बताया था वैसे ही होता है। आयरलैंड का कॉन्स्टिट्यूशन से डीपीएस लिया है, नॉमिनेशन ऑफ मेंबर टू राज्यसभा लिया है, और मेथड ऑफ इलेक्शन रेड याद कर लो, रेड RED, आर से हो जाएगा तुम्हारा राज्यसभा, इलेक्शन ऑफ नॉमिनेशन ऑफ मेंबर टू राज्यसभा जब 12 मेंबर्स को प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है, ई से हो जाएगा ये मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। भैया प्रेसिडेंट का ऑफिस और उसका रिमूवल यूएस से लिया, लेकिन उसके मेथड इलेक्शन का वो आयरलैंड से, और डी से डीपीएसपी पढ़ेंगे अभी। कनाडा से फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, अभी बताया, ठीक है। अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर बाई सेंटर, सी से कनाडा, ठीक है। और वेस्टिंग ऑफ रेजिडुअरी पावर इन सेंटर, सी से कनाडा। रेजिडुअरी पावर क्या होते हैं अभी बताएंगे आपको आगे। एडवाइजरी जुरिसडिक्शन, कौन सा आर्टिकल था सुप्रीम कोर्ट का एडवाइजरी जुरिसडिक्शन, जहाँ पे प्रेसिडेंट दौड़ते हुए जा रहा था, सुप्रीम कोर्ट एडवाइस दे दो हमको, एडवाइस बाइंडिंग थी कि नहीं थी बताओ। तो ये एडवाइजरी जुरिसडिक्शन आर्टिकल 114 थी, एडवाइस बाइंडिंग नहीं थी। ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया है, इसको भी बड़ी आसानी से याद किया जा सकता है। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया, एस से सिटिंग यानी जॉइंट सिटिंग, ट्र से ट्रेड एंड कॉमर्स, और एल से लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, समवर्ती सूची। ये क्या होती है समवर्ती सूची नहीं बताएंगे अभी, जब शेड्यूल पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, ठीक है। वेमार कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी, जर्मनी के संविधान से जो मौलिक अधिकारों को सस्पेंड कर दिया जाता है इमरजेंसी के टाइम पे, वो लिया है। रशिया या फिर सोवियत यूनियन से मौलिक कर्तव्य और आइडियल्स ऑफ जस्टिस लिए हैं, ठीक है। और इसमें एक और नोट करो, फ्रांस वाला भी नहीं नोट करूँगा, अभी पढ़ाऊंगा प्रियम्बल में फ्रांस वाला। और जापान से नोट करो, विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया, प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाई लॉ, बस और कुछ याद नहीं करना है। फ्रांस वाला अभी याद नहीं करना, अभी बताएंगे, ठीक है। और ना ही साउथ अफ्रीका वाला, साउथ अफ्रीका से अमेंडमेंट लिए हैं, लेकिन अभी देखेंगे आगे, ठीक। आ जाते हैं शेड्यूल्स, अनुसूचियों पे। अनुसूचियाँ क्या होती हैं, तो जो चीज़ हमारे आर्टिकल में लिखी हुई है, ठीक है, जो चीज़ हमारे पार्ट्स में लिखी हुई है, उसके अलावा जो चीज़, ठीक है। अब जब यहाँ पे हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया था ना, तो उस दिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 395 आर्टिकल, 395 अनुच्छेद थे, ध्यान रखना। ये हमारा पूरा कॉन्स्टिट्यूशन 22 पार्ट्स में डिवाइडेड था, 22 भाग में, और इसमें 8 शेड्यूल्स थे, 8 अनुसूचियाँ थी इसमें। 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ। और आज अगर हम बात करेंगे तो ये 22 भाग 25 भाग बन चुके हैं, 25 पार्ट्स, 8 शेड्यूल 12 शेड्यूल बन चुके हैं। आर्टिकल वो चेंज होते रहे तो आपसे नहीं पूछेगा, ठीक है। तो यहाँ पे शेड्यूल्स ओरिजिनली तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 8 थे, लेकिन एट प्रेजेंट कितने हैं, 12 हैं, यानी कि 9, 10, 11, 12 उनको जोड़ा गया है बाद में। याद कैसे रखते हैं इनको, याद हम रखते हैं अपने प्रधानमंत्री के आंसुओं से, टीयर्स ऑफ ओल्ड PM, प्रधानमंत्री जो बूढ़ा हो गया उसके आंसुओं से। टी से क्या है यहाँ पे, टी से ये है, टी से ये है टेरिटरीज, स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज के नेम और उनका बाउंड्री वो लिखा हुआ है इसमें, उनका टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन लिखा हुआ है यहाँ पे। दूसरा ई से क्या है, ई से है एमोल्यूमेंट, यानी कि उनका भत्ता, ठीक है। स्पेशल पावर एंड सैलरी, सैलरी का भी भत्ता होता है, एमोल्यूमेंट होता है उसका मतलब, ठीक है। तो सैलरी हम देख रहे थे हर जगह जहाँ सैलरी आ रहा था वहाँ तो शेड्यूल 2 लिखा हुआ था। ए से क्या है, एफर्मेशन और ओथ, एफर्मेशन या फिर ओथ और एफर्मेशन। तो ए से एफर्मेशन हो गया, तो ओथ लिखी हुई जहाँ पे हम देख रहे थे, जहाँ ओथ लिखा हुआ था, तो वहाँ पे ओथ रिवाइज करते हैं। प्रेसिडेंट को कौन दिलाता है, CJI, जजेस को सुप्रीम कोर्ट को प्रेसिडेंट, हाई कोर्ट के जजेस को गवर्नर, वाइस प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंट, ठीक है। तो ये सब दिलाते हैं। और प्रेसिडेंट अपना इस्तीफा वाइस प्रेसिडेंट को देता है, वाइस प्रेसिडेंट को देता है, स्पीकर ऑफ लोकसभा डिप्टी स्पीकर को, डिप्टी स्पीकर स्पीकर को। आर से क्या है, आर से राज्यसभा, सिंपल। राज्यसभा में सीटों का आवंटन, हिंदी मीडियम वाले सर्च कर लो, शेड्यूल से हिंदी, वो आपको नहीं लिखा हुआ यहाँ पे, मैंने नहीं लगाया क्या, तो वहाँ पे वो कर लो, आपको पूरा आ जाएगा। अगर कहीं पे दिक्कत होगी तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो राज्यसभा में सीटों का आवंटन दिया हुआ है, ठीक। और अभी हमने पढ़ा नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स इन राज्यसभा, कहाँ से लिया है बताइए जरा। राज्यसभा में जो मेंबर्स को नॉमिनेट किया जाता है वो प्रोसीजर ने कहाँ से लिया है। ऐसे क्या है, शेड्यूल्ड एरियाज एंड शेड्यूल्ड एरिया और शेड्यूल्ड ट्राइब्स का जो एडमिनिस्ट्रेशन है। ओ से क्या है, अदर शेड्यूल्ड एरियाज, जिनको कि ट्राइबल एरिया भी बोल देते हैं, जिनको कि हम ट्राइबल एरिया भी बोल देते हैं, ठीक है। वो से अदर शेड्यूल्ड एरिया याद कर लो, या फिर ट्राइबल एरिया होता है। इसमें 4 राज्य लिखे हुए हैं, वो तुमसे पूछ लेता है वो 4 राज्य कौन से हैं। वो 4 राज्य हमें याद करने होते हैं, ATM में मनी, असम लिखा हुआ वहाँ पे, असम, त्रिपुरा, M से मेघालय और M से मिजोरम। इस ATM में मनी नहीं है, बस ये ध्यान रखना, यानी मणिपुर नहीं, वो पक्का मणिपुर देगा ही देगा अगर पूछेगा स्टेट तो। F में क्या, F से क्या है, F से है ये फेडरल प्रोविजंस, फेडरल प्रोविजंस। फेडरल प्रोविजंस का मतलब क्या होता है, फेडरल का मतलब होता है पावर्स का बंटवारा। तो शेड्यूल 7 में 3 लिस्ट लिखी हुई हैं, यूनियन, स्टेट और कॉन्करेंट। मतलब ये है कि पार्लियामेंट किन किन मैटर्स को लेकर लॉ बना सकता है, कानून बना सकता है, स्टेट का लेजिस्लेचर किन किन मैटर्स पर लॉ बना सकता है, वो लिखा हुआ है। यूनियन की जो लिस्ट है उस पर जितने भी सब्जेक्ट हैं उस पर सिर्फ देश की संसद यानी कि पार्लियामेंट लॉ बना सकती है। इसमें कैसे सब्जेक्ट लिखे हुए हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं, जैसे कि डिफेंस हो गया, बैंकिंग हो गया, रेलवे हो गया, एटॉमिक एनर्जी हो गया, जो भी इंपॉर्टेंट मसले हैं जिनका लेना देना पूरे देश से है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर स्टेट लिस्ट के कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, स्टेट लिस्ट के वो सब्जेक्ट जिस पे कि सिर्फ स्टेट का लेजिस्लेचर ही लॉ बना सकता है, जैसे कि पुलिस, जैसे कि हेल्थ, जैसे कि बेटिंग हो गया और गैम्बलिंग, गैम्बलिंग जो होता है, ठीक है, बेटिंग और जो गैम्बलिंग होता है आपका, ठीक है, बेटिंग जितने बेटिंग ऐप्स वगैरह होते हैं तो उन सबको रेगुलेट करने का काम स्टेट लिस्ट में होता है, ठीक है। और एक लिस्ट होती है कॉन्करेंट लिस्ट, जिसको बोलते हैं समवर्ती सूची। इसमें क्या आता है, इसमें आता है जैसे हमारा एजुकेशन, शिक्षा, ठीक है। इसमें आता है जैसे मैरिज एंड डाइवोर्स, ठीक है। इसमें आता है आपके जो लेबर डिस्प्यूट्स होते हैं, इसको ऐसे याद कर लो। देखो ये तो सिर्फ मैंने एग्जांपल लिखे हैं, यूनियन लिस्ट में 100 से ज़्यादा सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। यूनियन लिस्ट में 100 से भी ज़्यादा सब्जेक्ट्स हैं। ऐसे स्टेट लिस्ट में बहुत सारे सब्जेक्ट, वो सारे सब्जेक्ट हम याद नहीं कर सकते हैं। हम एक जनरल अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकते हैं कि इसमें किस किस तरह की चीज़ें लिखी हुई, जैसे डिफेंस, बैंकिंग, रेलवे, एटॉमिक एनर्जी, या फिर आप करेंसी ले सकते हो। ये सब इनका सबका लेना देना पूरे देश से है, तो इंपॉर्टेंट मसले हैं यहाँ पे। वहीं पुलिस ले लें, हेल्थ ले लें, लोकल गवर्नमेंट ले लें, ठीक है, लोकल गवर्नमेंट ले लें, एग्रीकल्चर ले लें,
तो इन सब का लेने देना राज्य से होता है, ठीक है। इसलिए ये सारे स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट में। कॉन्करेंट में ऐसे याद कर लो कि जो मतलब दोनों सरकारें नहीं देखना चाहती, भाई मैरिज डाइवोर्स कौन ही इनके पचड़े में पड़े, इन ये सब मैटर कभी सॉल्व होने वाले नहीं है। मैरिज डाइवोर्स डिस्प्यूट, शिक्षा भी सोचते हैं शिक्षा यार तुम देख लो, हमें तो बस समझो मतलब ये सब ऐसे हैं जिनको अवॉइड करना चाहते हैं ये लोग, तो इसलिए इनको इसमें डाल दिया। जैसे कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी। इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी क्या होता है, जब कोई दिवालिया वगैरह हो जाता है तो उसके खिलाफ जो केसेस चलते हैं उसको इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोलते हैं। तो ये सब इसमें है, ठीक है, कॉन्करेंट लिस्ट समर्थी सूची में। यूनियन लिस्ट के सब्जेक्ट्स पे स्टेट का लेजिस्लेचर लॉ नहीं बना सकता है। स्टेट के लिस्ट के सब्जेक्ट में यूनियन यानी पार्लियामेंट देश की संसद लॉ नहीं बना सकती है। कॉन्करेंट लिस्ट में ये कौन सी लिस्ट है, ये वो लिस्ट है जिसपे दोनों बना सकते हैं, यूनियन भी और स्टेट भी। लेकिन अगर दोनों ने बना दिया तो यूनियन का प्रिवेल करेगा। सर क्या मान लो कि कोई ऐसा सब्जेक्ट आ गया जिसपे कि जो लिखा ही नहीं हुआ इन तीनों लिस्ट में, तो उसको क्या बोलेंगे, उसी को तो बोलते हैं रेजिडुअरी लिस्ट, जिस पे लॉ बनाने का पावर सेंटर के पास होता है। ये कहाँ से लिया है, कनाडा से लिया है इस चीज़ को, कि रेजिडुअरी लिस्ट जो है सेंटर के पास करती है, इसलिए सेंटर से कनाडा। लेकिन कुछ ऐसे मैटर होते हैं, कुछ ऐसे अपवाद होते हैं, कुछ ऐसे सिचुएशंस होती हैं जहाँ पे स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पे पार्लियामेंट लॉ बना देता है। कौन सी सिचुएशंस होती हैं, अगर देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगा है तो, अगर उस राष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगा है तो, अगर कोई एक इंटरनेशनल ट्रीटी को एनफोर्स करना लागू करवाना है तो, और अगर दो या दो से ज़्यादा राज्यों ने अपने वहाँ से बिल पास करवा लिया और बोला, बिल पास करवा के पार्लियामेंट से गुहार लगाई कि प्लीज़ हमारे सब्जेक्ट पे लॉ बना दीजिए, तो बना सकता है, जो उन्हीं स्टेट के लिए वैलिड होगा। ये कुछ अपवाद होते हैं, ठीक। ओ से क्या है, ओ से ऑफिशियल लैंग्वेज है। ये ऑफिशियल लैंग्वेज क्या होता है, जो 8th शेड्यूल में लिखा हुआ है, बड़ी जल्दी जल्दी आ रहा है सब है। तो शेड्यूल में, इस शेड्यूल में क्या लिखा हुआ है, ऑफिशियल लैंग्वेजेस। अब ऑफिशियल लैंग्वेज पे एक अलग से हमारा, अलग से क्या है, अलग से वो है, वो मतलब वही, वो मतलब एक पार्ट है, पार्ट नंबर पता जल्दी से कौन सा है, जो इमरजेंसी के जस्ट पहला वाला पार्ट है, पता जल्दी से, तो उसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये और शेड्यूल 8 को ध्यान रखना थोड़ा सा। शेड्यूल नंबर 8 8वीं जो अनुसूची है, इसमें टोटल अगर हम बात करें क्या दी हुई, लैंग्वेजेस, भाषाएं दी हुई हैं। कितनी भाषाएं दी हुई हैं, 14 लैंग्वेजेस दी हुई हैं। और अभी कितनी है, 22 लैंग्वेजेस हैं। ओरिजिनली इतनी थी, अभी कितनी है, 22 हैं। तो यानी कि कोई ना कोई अमेंडमेंट हुआ होगा। जी हाँ, 21st अमेंडमेंट हुआ है, 71st अमेंडमेंट हुआ है, 92nd अमेंडमेंट हुआ है। तो 21st अमेंडमेंट से सिंधी को जोड़ा गया था, 71st अमेंडमेंट से KMN कोंकणी, मणिपुरी, कोंकणी कहाँ बोली जाती है बदल से, और एन नेपाली, इन तीनों को जोड़ा गया था। 92nd की अगर हम बात करें तो इससे उसको जोड़ा गया था BDSM, ठीक है। तो BDSM को जोड़ा गया था। BDSM क्या है, वो नहीं जो आप सोच रहे हैं, बोडो, ठीक है, याद करने के लिए है। तो ये मैं सोच रहा कि कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने जानबूझ के इन्हीं को याद किया था, ठीक है। बोडो, डोंगरी, संथाली और मैथिली, ठीक है, मैथिली। और कोंकणी हमारी महाराष्ट्र गोवा में बोली जाती है, सदर्न महाराष्ट्र गोवा। और अभी रिसेंट में एक लैंग्वेज और को ऐड करने का मांग उठा है, जो कि है कोई लैंग्वेज, ऐड नहीं हुई है लेकिन मांग उठा है। ये कहाँ बोली जाती है बता दीजिए, शेड्यूल 8 हो गया। अब यहाँ पे जो 9, 10, 11 और 12 है, इनको अमेंडमेंट्स ऐड किया गया, वो देख लेते हैं। तो कोई लैंग्वेज ओडिशा में बोली जाती है, ओडिशा में, ठीक है। और ओडिसी भी 8 शेड्यूल में घुसी हुई है, ध्यान रखना, ओडिसी भी है यहाँ पे। जो पहले ओडिया के नाम से जानी जाती थी, उसका नाम चेंज किया गया था 96th अमेंडमेंट से, ओडिया को ओडिया किया गया था, ठीक है। हाँ, ये बताइए भारत में सबसे कम कौन सी शेड्यूल लैंग्वेज बोली जाती है, सबसे ज़्यादा तो हिंदी बोली जाती है, सबसे कम कौन सी बोली जाती है, और तीसरी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है, जो शेड्यूल लैंग्वेज पूछता है सभी क्वेश्चन। अब आ जाते हैं 9th शेड्यूल, ठीक है, 10th, 11th एंड 12th, ठीक है। टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम में ये डी है, ठीक है। टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम में एल है, ये डी है, ये पी है, ये एम है। एल से है लैंड प्रोविजंस, यानी इसमें ज़मींदारी वगैरह को एबॉलिश किया गया था। इसको हमने फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से जोड़ा था, जो 1951 में हुआ था, 1951 में। 10th डी से है डिफेक्शन की बात करता है ये। डिफेक्शन मतलब जो दल बदल में बता रहा था, दल बदल ये क्या होता है, अगर कोई अपनी पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में उछल के चला जाए, ठीक है, क्योंकि वहाँ दूसरी पार्टी से कुछ पैसा वैसा मिल गया, तो डिफेक्शन के प्रोविजंस काम करते हैं। 10th शेड्यूल में एडेड है, इसको हमने 52nd अमेंडमेंट से जोड़ा था। पी से पंचायत के बारे में है, इसको कि 73rd अमेंडमेंट से जोड़ा था। और एम से है म्यूनिसिपैलिटी यानी नगर पालिका। अब इसमें ज़्यादा डेप्थ में नहीं जा रहा हूँ मैं, जैसे कि जानबूझ के कहीं मैंने अवॉइड किया। जैसे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये है कि अभी चलो बताता हूँ, ठीक है। म्यूनिसिपैलिटी यानी नगर पालिका, म्यूनिसिपैलिटीज़, ये आपका है 74th अमेंडमेंट से, ठीक है। इसमें टोटल 29 फंक्शनल आइटम्स हैं, फंक्शनल आइटम्स, और इसमें टोटल 18 फंक्शनल आइटम्स हैं। अब यहाँ पे मैंने क्या चीज़, मतलब जैसे यहाँ पे ये चीज़ भी क्वेश्चन बना नहीं, इसलिए मैंने बताया नहीं है, मेंस में बन सकता है, तो उस टाइम पे देखेंगे। एंड दैट इज़ कि अगर कोई मुझसे मान सुधा मूर्ति है, इंडिपेंडेंट, मतलब इंडिपेंडेंट किसी पार्टी से तो है नहीं, तो कोई इंडिपेंडेंट मेंबर अगर कोई पार्टी ज्वाइन करता है तो वो कर सकता है, लेकिन उसके पास 6 महीने का टाइम होता है। 6 महीने के बाद कोई पार्टी ज्वाइन करेगा, सॉरी इंडिपेंडेंट बोलो, ये नॉमिनेटेड होंगी, ठीक है। 6 महीने के बाद पार्टी, मतलब ये नॉमिनेटेड होंगी, ठीक है। तो नॉमिनेटेड मेंबर 6 महीने के अंदर पार्टी ज्वाइन कर सकता है, 6 महीने के बाद करेगा डिफेक्शन लग जाएगा। कोई इंडिपेंडेंट, जैसे अभी चुनाव हुए थे तो काफ़ी लोग इंडिपेंडेंट यानी किसी भी पार्टी से नहीं लड़ते हैं, अकेले लड़ते हैं, ठीक है। अकेले मतलब बिना किसी पार्टी से एसोसिएट करके, वो अगर किसी भी कोई पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर ले, कभी भी डिफेक्शन लग जाएगा तुरंत। क्यों? क्योंकि आपको लोगों ने इसीलिए वोट दिया था क्योंकि आप किसी पार्टी से नहीं थे, आप उस पार्टी में जुड़ रहे हैं जाके, लोगों का मतलब लोगों का ट्रस्ट यहाँ पे नहीं खराब होता है। लोगों ने तो आपको इसलिए चुन के भेजा था वहाँ पे कि आप किसी पार्टी में नहीं, वहाँ पे पार्टी में जुड़ गए तो डिफेक्शन लग जाएगा। कोई एक पार्टी छोड़ के दूसरी में चला जाए, यहाँ पे एक्सेप्शन होता है, अपवाद होता है। कुछ लोगों के मन दिमाग में क्वेश्चन आता है कि सर छोड़ के जाते तो रहते हैं काफ़ी लोग, जैसे वो शिवसेना छोड़ के एकनाथ शिंदे का जो गुट था, कुछ नहीं लगा उनके खिलाफ, तो क्योंकि वो मर्जर वाला केस था। अगर 2/3 से ज़्यादा लोग पार्टी छोड़ के जाते हैं तो मर्जर ट्रीट किया जाता है और उसमें डिफेक्शन नहीं लगता। इस चीज़ को 91st अमेंडमेंट से 91 जो संविधान संशोधन हुआ था उससे जोड़ा गया था, ठीक है। खत्म होता है शेड्यूल भी यहाँ पे। अब आते हैं प्रियम्बल पे, ठीक है, जिसको कि हम बोलते हैं प्रस्तावना हिंदी में। सर लंच करने जाना, जाओ भाई जाओ, लंच वंच जिसको करना है जाओ आराम से, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वही है कि बस ठीक है, मिस कर दोगे, खैर कोई बात नहीं, लंच ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रियम्बल पे आते हैं, प्रस्तावना बोलते हैं। क्या है ये कॉन्स्टिट्यूशन की समरी है।
ये पूरा संविधान बन गया था तब इसको बनाया गया था। सर आप तो बोले तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ही प्रियम्बल है और वो तो पहले आ गया था। वो प्रियम्बल नहीं था, वो प्रियम्बल का एक हम बोल सकते हैं कि अरे प्रियम्बल का मतलब प्रियम्बल की तरह था वो, ठीक है। तो आ गया था कि इसमें ये समरी है और इस चीज़ का ध्यान में रखना है। लेकिन भाई तुम खुद ही सोचो, जब बुक का इंडेक्स तुम कब लिख पाओगे? तुमने कोई बुक लिखी है, उसका इंडेक्स तुम क्या उसके पहले लिख दोगे क्या कि एक पेज नंबर से लेकर 4 पेज नंबर के बीच में ये दिया हुआ है, 5 से लेकर 10 के बीच में दिया हुआ है? जब लिख के पूरा कर दोगे तभी तो इंडेक्स लिख पाओगे। तो प्रियम्बल भी तभी कंपोज किया गया जब समरी तभी लिखी गई। समरी तो तभी लिख पाओगे जब पूरा कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ोगे, तो समरी कॉन्स्टिट्यूशन की। इसको कॉन्स्टिट्यूशन का आईडी कार्ड किसने बोला था? कॉन्स्टिट्यूशन का पॉलिटिकल हॉरोस्कोप किसने बोला था इसको? पॉलिटिकल हॉरोस्कोप आईडी कार्ड, आईडी कार्ड बोला था एन ए पालखी वाला जी ने, ठीक है। एन ए पालखी वाला पॉलिटिकल हॉरोस्कोप के एम मुंशी जी ने बोला था। वही मुंशी जी जो ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर थे और वही मुंशी जी जो एक हमारी बिजनेस और एडवाइजरी कमेटी के चेयरमैन थे, ठीक है। तो ये प्रियम्बल के बारे में हो गया। प्रियम्बल हमने कहाँ से बोरो किया है? यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया है, अमेरिका से इसको बोरो किया है। और कुछ तो नहीं है, नहीं इसमें, ठीक है। प्रियम्बल, अभी इस पे आते हैं, ठीक है। सबसे एकदम छोटा चैप्टर हमारा प्रियम्बल समरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे पूरा पढ़ सकते हैं, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व। तो ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी ये बताता है कि सोर्स ऑफ पावर क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का। ये सोर्स ऑफ पावर बोलता है कि संविधान को अपनी शक्तियाँ कहाँ से मिलती हैं, कहाँ से लेता है। ये हमारे नेचर को बताता है, संविधान के नेचर को, क्या? सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। ये क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर है। सॉवरेन का मतलब क्या होता है? संप्रभुत्व का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है हम अपने डिसीजन लेने के लिए इंडिपेंडेंट है, कोई हम पे बाध्य नहीं है, ठीक है। सोशलिस्ट, समाजवाद का मतलब क्या होता है? सोशलिस्ट का मतलब ये होता है कि देखो, सोशलिस्ट का मतलब ये होता है कि जो सरकार होती है वो इकोनॉमी को रन कर रही है, वही देश की अर्थव्यवस्था को चलाती है, ऐसी सरकार को हम सोशलिस्ट गवर्नमेंट बोलते हैं। सेकुलर, पंथ निरपेक्ष, धर्म निरपेक्ष, यहाँ पे सारे धर्मों को मान्यता मिली हुई है। जैसे कि हमारा पड़ोसी पाकिस्तान है, वो है इस्लामिक स्टेट ऑफ पाकिस्तान है। हमारा पड़ोसी है बांग्लादेश, जो पहले सेकुलर हुआ करता था, अब क्या है? अब वो धीरे धीरे क्या है, इस्लामिक स्टेट की ओर बनने की ओर जा रहा है। तो ये क्या हम बोल सकते हैं कि सेकुलर वो जहाँ पे हर धर्म को मान्यता हो, ठीक है। और कोई जैसे हिंदू धर्म को सिर्फ मान्यता है, इस्लाम धर्म को मान्यता है, तो सेकुलर नहीं कहलाते हैं, ठीक है। डेमोक्रेटिक की अगर बात करें, डेमोक्रेटिक का मतलब होता है लोकतंत्र। इसको डिफाइन किया था लिंकन जी ने, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। उसको लोगों के लिए, लोगों की, लोगों के द्वारा सरकार, उसको डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बोलते हैं। रिपब्लिक का मतलब इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। रिपब्लिक का मतलब होता है, रिपब्लिक का मतलब होता है जहाँ पे इलेक्टेड हेड होता है। हमारे यहाँ पे हेड कौन है? भारत का मुखिया, राष्ट्रपति। क्या वो इलेक्टेड है? जी हाँ, इनडायरेक्टली इलेक्टेड है। यूएसए क्या वो रिपब्लिक है? बिल्कुल। हेड कौन होता है? प्रेसिडेंट। वहाँ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चलती है, इलेक्टेड होता है, बिल्कुल इलेक्शन होता है। ब्रिटेन, ब्रिटेन रिपब्लिक नहीं है, ब्रिटेन इज नॉट अ रिपब्लिक। ब्रिटेन नॉट अ रिपब्लिक क्यों? क्योंकि उनका वहाँ पे कौन है? वहाँ का हेड अभी किंग चार्ल्स दी थर्ड, क्वीन एलिजाबेथ के बाद, ठीक है। रिपब्लिक नहीं है क्योंकि वो हेड है और वो इलेक्टेड नहीं है, वो पूरी उनका हेरिडेटरी हेड है वो, ठीक है। ये क्या है? जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, ठीक है। ये चीज़ अब यहाँ पे एकदम कायदे से रट लेना इसको। 3 तरह की जस्टिस दी, इसको रट लेना, एकदम रट लेना तो रट लेना, ठीक है। इसमें कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। जो टॉपिक्स आने वाले हैं इंक्लूडिंग प्रियम्बल, प्रियम्बल के बाद फंडामेंटल राइट, अभी तो खैर हम लोग पार्ट 1 पार्ट 2 करेंगे, लेकिन उसके बाद पार्ट 3 फंडामेंटल राइट और डीपीएस पे फंडामेंटल ड्यूटी, जिसके बाद आपका खत्म है सब कुछ। तो ये जो है बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जस्टिस 3 तरह के, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल। लिबर्टी 5 तरह की है, थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। इक्वालिटी 2 तरह की, स्टेटस और अपॉर्चुनिटी। और फ्रेटर्निटी है सिर्फ 1 तरह की, और फ्रेटर्निटी ही है, ठीक। एश्योरिंग द डिग्निटी एंड इंडिविजुअल। ये मत सोचना फ्रेटर्निटी एश्योरिंग द डिग्निटी हो गया और यूनिटी, ऐसा कुछ नहीं। वो फ्रेटर्निटी सिर्फ एक ही तरह की है, एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। और यहाँ पे डेट ऑफ एडॉप्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन दी है कि हमने अपने संविधान को 26 नवंबर 1949 को एडॉप्ट किया था, लागू किया था। क्लियर? क्लियर है यहाँ तक? अब ये जो जस्टिस का प्रिंसिपल्स हैं, ये हमने रशिया के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए, यूएसएसआर से। और लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रैटर्निटी, इसको लिया फ्रेंच रेवोल्यूशन से, ये ओरिजिनेट हुए थे। तो फ्रांस की कॉन्स्टिट्यूशन, तो वहाँ पे मैंने नहीं लिखा था सोर्सेज में, इसलिए यहाँ पे नोट कर लेना, फ्रांस की कॉन्स्टिट्यूशन से लिए थे लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रैटर्निटी को। खत्म हो गया प्रियम्बल। अब आते हैं पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। पहला पार्ट दैट टॉक्स अबाउट यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। ये किसकी बात करता है? यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, संघ व उसके राज्य क्षेत्र। पार्ट 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 1 से लेकर 4, अनुच्छेद नंबर 1 से 4 तक के बीच में इसमें दिया हुआ है। पहला आर्टिकल बोलता है इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट, यानी 2 नाम लिखे हुए हैं, इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, ये लिखा हुआ है इसमें। इसका मतलब क्या है? शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, इसका मतलब ये है कि इंडिया अर्थात भारत वो राज्यों का एक संघ होगा। अनुच्छेद 1 पढ़ के हमें टाइप ऑफ पॉलिटी इन इंडिया का पता चलता है, भारत में किस तरह की पॉलिटी है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो इंडिया के स्टेट्स हैं उनके बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं है इंडिया का यूनियन बनाने के लिए। बात अम्बेडकर जी ने क्लैरिफाई कर दी थी कि स्टेट ये ना सोचें कि वो मतलब उनके बीच में मतलब कोई एग्रीमेंट है। ये जो हमारा इंडिया है वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की तरह नहीं है कि स्टेट के पास कि मतलब स्टेट के पास राइट टू सिसीड है। हमारे इंडियन स्टेट्स के पास दे हैव नो राइट टू सिसीड फ्रॉम द यूनियन। अगर उनको चाहिए कि वो भारत से अलग रहना चाहते हैं, ऐसा नहीं पॉसिबल है, ठीक है। तो टाइप ऑफ पॉलिटी है, ठीक। क्लियर? दूसरा और तीसरा ये क्या बात करते हैं? ये दूसरा बात करता है एडमिशन और एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट। अगर कोई नए स्टेट को, किसी टेरिटरी को हमें भारत का हिस्सा बनाना है, उसको राज्य बनाना है, तो आर्टिकल 2। आर्टिकल 3 फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट, ये है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट, ये फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट। फॉर्मेशन का मतलब ये होता है भैया, 2 और 3 में कंफ्यूजन होता है ना आपको। तो 2 का मतलब होता है कि कोई फॉरेन टेरिटरी को, जैसे मान लो कि पाकिस्तान को हिस्सा है, बांग्लादेश को हिस्सा है, उसको भारत में मर्ज करके एक राज्य बनाना चाहे, आराम से अनुच्छेद 2 का इस्तेमाल करिए। 3 कोई एग्जिस्टिंग स्टेट में आपको छेड़छाड़ करनी है, ठीक है। अगर कोई एग्जिस्टिंग स्टेट है उसमें आपको छेड़छाड़ करने से मेरा मतलब है उसकी बाउंड्री को चेंज करना है, उसका नाम बदलना है, उसको तोड़ के 2 राज्य बना देना है, उसको तोड़ के 3 राज्य बना देना है। वो 3 आर्टिकल नंबर 3 से होगा। जैसे कि छत्तीसगढ़ बना एमपी से टूट के 2000 में, सन 2000 में। ऐसे उत्तराखंड बना सन 2000 में यूपी से टूट के, झारखंड बना बिहार से टूट के। तो सब आर्टिकल 3 का यूज़ करके हुए होंगे, क्यों? एग्जिस्टिंग स्टेट के साथ कुछ कर रहे हैं ना, इसलिए। और आर्टिकल 2 में जो हमारा भारत का पार्ट नहीं है उसको अगर भारत में ला रहे हैं तो 2। और 4 ये बोलता है कि जो भी तुम 2 और 3 के चेंजेस करोगे उसको आर्टिकल, ये क्या लिखा हुआ लॉज में, मतलब 368 के तहत अमेंडमेंट डील नहीं किया जाएगा। पहले पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ। लॉज मेड अंडर आर्टिकल 2 एंड 3 टू प्रोवाइड फॉर द अमेंडमेंट ऑफ द फर्स्ट एंड फोर्थ शेड्यूल ऑफ द एंड सप्लीमेंट्री। ये छोड़ो, इसमें जो लिखा हुआ है इसमें ये ध्यान रखना, अमेंडमेंट अंडर Article 2 and 3 shall not be dealt as amendment under
आर्टिकल 368 यानी अनुच्छेद 368 के तहत उनको संविधान में संशोधन नहीं माना जाएगा। अब ये यहाँ थोड़ा सा पॉज कर लो, तुमको पॉज करने ब्रेक लेने का नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ इसको पॉज कर लो। ये 368 क्या है बस इसके बाद ही लगा हुआ है, ठीक है। इसके बाद हम लोग समझेंगे 368 अमेंडमेंट। बस अभी के लिए समझ लो आर्टिकल 2 और 3 के जो आप चेंजेस करते हो वो अमेंडमेंट नहीं डील किए जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये सिंपल मेजोरिटी से किए जाते हैं। जो भी दोनों अमेंडमेंट है इसको करने के लिए आर्टिकल 2 और 3 में जो आपको चेंजेस करने होते हैं उसके लिए सिर्फ सिंपल मेजोरिटी लगती है, साधारण बहुमत लगता है। और ये जो इस तरह का बिल होता है उस बिल को पहले प्रेसिडेंट के पास प्रेसिडेंट को उस बिल को प्रेसिडेंट के पास पहले भेजना होता है। क्यों? क्योंकि प्रेसिडेंट उस बिल को स्टेट के पास भेजेगा, राज्यों के पास, उनकी एडवाइस लेने के लिए। और ये चीज़ को 5th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ऐड किया गया था। जो 5वां संवैधानिक संशोधन है उसने बोला था कि राष्ट्रपति एक स्टिपुलेटेड टाइम के अंदर स्टेट से एडवाइस लेगा कि भैया हम तुम्हारा नाम चेंज कर रहे हैं, तुम्हारी बाउंड्री चेंज कर रहे हैं, या तुम्हारा हम तुमको तोड़ रहे हैं, तो तुम ये बता दो, ठीक है। क्योंकि आर्टिकल 3 में तो यही सारे काम होते हैं, तुम बता दो तुमको कुछ अगर तुम्हारी आखिरी इच्छा हो तो, क्योंकि काम तो करेगा पार्लियामेंट ही, वो चेंज तो पार्लियामेंट ही करेगा सर, सिंपल मेजोरिटी से, वो भी स्पेशल भी नहीं चाहिए, लेकिन तुमको कुछ एडवाइस देनी तो दे सकते हो। तो ये 5th अमेंडमेंट ने बोला था कि प्रेसिडेंट एक स्टिपुलेटेड टाइम है वो चीज़ पूछेगा आर्टिकल 3 में। ये 5th अमेंडमेंट, तो 5th अमेंडमेंट किससे डील करता है? आर्टिकल 3 से। बात आई फिर बाद में कि भाषा के आधार पर क्या राज्य बनने चाहिए क्या, तो एक इसको लेकर धार कमीशन बना। तो अभी आप याद कर सकते हो जो लिंग्विस्टिक हमारा एक कमेटी बनी थी, उसके मेरे चेयरमैन कौन थे? धार जी थे, ठीक है। तो धार कमीशन बनाया गया इसको लेकर 1948 में। उन्होंने बोला नहीं बनने चाहिए, ना मना कर दिया उन्होंने, भाषा के आधार पर राज्य नहीं बनने चाहिए। राज्यों का और गुस्सा बढ़ गया, जेवीपी कमीशन बनाया गया, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीताराम की चेयरमैनशिप में, इन्होंने भी मना कर दिया। फिर एक बनाया गया फजल अली कमीशन, ठीक है। क्यों बनाया गया? क्योंकि इसके बीच में कुछ हो गया था। क्या हो गया था? इसके बीच में ये हो गया था, एक पट्टी श्री रामलू या फिर पट्टू श्री रामलू जी की डेथ हो गई थी। पट्टू श्री रामलू जी की डेथ हो गई थी इनकी। क्यों? क्योंकि ये फास्ट एंड टू डेथ पे बैठे हुए थे आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश मांग कर रहा था जोरों से कि हमें भाषा के आधार पे बनाया जाए, लिंग्विस्टिक बेसिस पे क्रिएट किया जाए। नहीं कर रहा था पार्लियामेंट, फास्ट एंड टू डेथ में डेथ हो गई, तो फिर जल्दी जल्दी में करना पड़ा आंध्र प्रदेश को क्रिएट। तो आंध्र प्रदेश वॉज द फर्स्ट स्टेट टू बी क्रिएटेड ऑन द लिंग्विस्टिक बेसिस, फर्स्ट स्टेट क्रिएटेड ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस। ये बनाया गया पहला राज्य। बाकी स्टेट ने और अपनी डिमांड तेज कर दी कि हमें भी क्रिएट करो, तो फिर इसलिए एक फजल अली कमीशन बनाया गया। 90 ये कब क्रिएट किया गया? ये कब हुई? 1953 में, 1953 में। तो इसके तुरंत बाद ही फजल अली कमीशन बना 1953 में। 3 लोग थे इसमें, हृदयनाथ कुंजरू, KM पन्निकर, और मैंने तुमसे बोला था जब पन्निकर दिखे तो मैंने कुछ तुम्हें बताया था, कौन सा तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट मारोगे, और पन्निकर जब दिखे तो कौन सा क्लासिकल डांस मैंने बताया था जिससे एसोसिएट होते हैं पन्निकर सरने वाले, जरा बताना। तो फजल अली कमीशन जब भी बना उसमें 3 लोग थे, फजल अली, HN और KM कुंजरू। फजल अली चेयरमैन थे। इन्होंने बोला ठीक है हाँ क्रिएट कर लो, मतलब इन्होंने मंजूरी दे दी थी, लेकिन उन्होंने 1 स्टेट और 1 जो लैंग्वेज की थ्योरी है उसको रिजेक्ट कर दिया था। इस थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया था, बोल दिया था भाषा के आधार पर बना लो, लेकिन हर एक लैंग्वेज के लिए हर एक राज्य होना चाहिए, ये गलत बात है। तो इनके रिकमेंडेशन पे एक पास किया गया एक्ट, स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1956, जिसके तहत स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज किया गया, ठीक है। एक स्टेट के बारे में ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछता है, दैट इज गोवा। गोवा को यूटी का दर्जा किस अमेंडमेंट से मिला? केंद्र शासित प्रदेश का जो दर्जा है वो किस संशोधन से मिला? ये मिला 12th अमेंडमेंट, जो 12वां संशोधन हुआ था उससे, ठीक है। और गोवा को स्टेट हुड का दर्जा कब मिला था? स्टेट हुड का जो इसको स्टेटस मिला था वो 56th अमेंडमेंट से मिला था, सॉरी ठीक है 56th अमेंडमेंट से मिला था, ठीक। सिक्किम का पूछता है कभी कभी, सिक्किम का ध्यान रखना, 35th अमेंडमेंट से इसको एसोसिएट स्टेट हुड का दर्जा मिला था। 35th अमेंडमेंट से एसोसिएट स्टेट हुड का दर्जा मिला था। एंड देन 36th अमेंडमेंट जो कि 1965 में हुआ, 1975 में हुआ था, ये हुआ था 1975, ये हुआ था 1974, 1975, इससे कंप्लीट स्टेट हुड मिला था, ठीक है। कंप्लीट स्टेट हुड मिला था इसे सिक्किम, ठीक है। ये 2 स्टेट के बारे में ध्यान रखना है। और फाइनली हम आर्टिकल 371 के बारे में भी यहीं पे ही पढ़ेंगे। धीरे धीरे लोगों का जोश कम होता होगा, बिल्कुल। दिव्यांश नए रात तक पढ़ाओ क्या सर जी, बेटा नए हो तुम अभी इस फील्ड में, समझ में आता है तुम्हारे कमेंट सही है ना, बाकी लोग लगे रहेंगे। और लास्ट में प्रेडिक्शन भी कर देता हूँ, लास्ट में बचेंगे लगभग 2000 के लमसम बचेंगे, और वही है जो फाइनल सिलेक्शन लेके जो है जाने वाले हैं। बाकी कितनी देर का लेक्चर बाकी है? इसके बाद फंडामेंटल राइट है, ठीक है, सिटीजनशिप तो 5 मिनट का, फंडामेंटल राइट है, DPSP है और फंडामेंटल ड्यूटी, बस ये 3 टॉपिक बचे हैं। बाकी तुम्हारे ऊपर है, ठीक है, जाना जा सकते हो। आर्टिकल 371 ये इसको हमें पता होना चाहिए, इसको याद कैसे करते हैं? इसमें कौन, मतलब इसमें आर्टिकल 370 ने जैसे कि जम्मू कश्मीर को पहले स्पेशल प्रोविजंस दे रखे थे, वैसे आर्टिकल 371 और उसमें ABCD ने स्पेशल प्रोविजंस दे रखे हैं कुछ स्टेट्स को, ठीक है। उसको हम याद कर सकते हैं, पूछ लेता 371 डी में क्या, ई में किस तरह से, तो ऐसे याद करते हैं। माता जी से आशीर्वाद लेते हुए हम अपने आर्टिकल 371 के अल्फाबेट्स को स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम ऐसे याद करते हैं। नाम, एक लड़की से तुमने पूछा नाम क्या है तुम्हारा, तो उसने बोला मेरा नाम है आसमा और मैं GK पढ़ती हूँ, परमार सर से ऐसे करके उसने बोला, ठीक है। N से है नागालैंड। तुम्हें पता है मेरे नाम से एक रोड भी बनवाई गई है अभी महाराष्ट्र में, यकीन नहीं होता होगा ना, अभी तो मैं शेयर करूँगा इस क्लास के बाद, ठीक है। एक नाम बनाई गई मेरे रोड से, परमार गुरुजी रोड, अभी मैं वो शेयर करूँगा अभी कमेटी पोस्ट पे। A से असम, M से मणिपुर, A से आंध्रा और A से आंध्रा की यूनिवर्सिटी। अब याद भूलें कैसे नहीं, असम और ये आंध्रा है, क्योंकि जहाँ पे 2 बार A है मतलब वहाँ पे आंध्रा है, एक आंध्रा और एक आंध्रा की यूनिवर्सिटी। सिक्किम अभी देखा था, चौग्याल डायनेस्टी यहाँ पे रूल कर रही थी, एसोसिएट स्टेटहुड का दर्जा देना, कंप्लीट स्टेटहुड। M मिजोरम, A अरुणाचल, G गोवा, K कर्नाटक। तो ये आर्टिकल 370 वहाँ पे मत देखो, ठीक है, तो देखना देख लो, ठीक है। ABCD, अब तुमसे कुछ भी पूछ ले, पूछ ले G में क्या है, तो तुम नाम आसमा जी के लिखो, नाम आसमा जी के लिखो, उसमें देख लो G में कौन सा है, ठीक है, बस खत्म। पार्ट 2 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सिटीजनशिप, नागरिकता, सबसे लीस्ट इंपॉर्टेंट है ये।
सबसे कम इंपॉर्टेंट होता है। इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें सिर्फ वही मैं आपको पढ़ाऊंगा। भारत में एकल नागरिकता चलती है, यानी कि भारत में आपके पास एक ही नागरिकता हो सकती है, भारत की, ठीक है। आपके पास किसी और देश की नागरिकता है, फिर आप मतलब यूपी के और एमपी के और बिहार के और राजस्थान के, हरियाणा के नागरिक नहीं हो सकते हैं आप, ठीक है। वहाँ के आप निवासी हो सकते हैं। तो ये हमने कहाँ से लिया? यूके से लिया, अभी हमने देखा था। और आर्टिकल्स आपको पता होना चाहिए कहाँ से कहाँ तक दिए हुए हैं, और आर्टिकल में सब आर्टिकल के बारे में याद नहीं रखना है। आर्टिकल 10 जो कॉन्टिन्यूएंस ऑफ राइट, कंटिन्यू ध्यान रखो। आर्टिकल 10 कंटिन्यू, बस खत्म। 11 पार्लियामेंट ही सिटीजनशिप को लेकर राइट बना सकता है, पार्लियामेंट ही नागरिकता को लेकर लॉ बना सकता है, बस। और 9th में लिखा है पर्सन्स वॉलंटरली एक्वायरिंग सिटीजनशिप ऑफ फॉरेन स्टेट नॉट टू बी सिटीजन। अगर कोई भी पर्सन जो भारत का नागरिक है अपनी इच्छा से किसी दूसरे देश की नागरिकता अपना लेता है तो उसके भारत की नागरिकता चली जाएगी। इन 3 आर्टिकल के अलावा आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं, कुछ भी 5 6 7 8 याद नहीं करना है आपको, 9 10 11 बस, ठीक। क्लियर है यहाँ तक? अब यहाँ पे हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, एंड दैट इज क्या? फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। वो फंडामेंटल राइट नहीं है अभी, सिटीजनशिप एक्ट, ठीक है। इसको पढ़ लेते हैं। सिटीजनशिप एक्ट पास हुआ था 1955 में। इसमें 2 चीज़ें हैं, एक तो किस तरह से कोई भारत का नागरिक बन सकता है, एक्वायर कर सकता है भारत की नागरिकता, और कोई कैसे भारत की नागरिकता को लूज कर सकता है, नहीं खो सकता है, ठीक है। तो एक्वायर कैसे की जा सकती है इंडिया की सिटीजनशिप? बाई बर्थ, यानी अगर आपका जन्म भारत में हो जाए। बाई डिसेंसी, जन्म तो बाहर हुआ है लेकिन मम्मी पापा भारत के ही हैं। पर रजिस्ट्रेशन, जन्म बाहर हुआ है, मम्मी पापा भारत के तो नागरिक नहीं है लेकिन भारत से ही बिलोंग करते हैं, पहले भारत में ही जन्म हुआ था, भारत की सिटीजनशिप उनके पास हुआ करती थी, मूलता भारत से हैं वो, ठीक है। और चौथा है बाई नेचुरलाइजेशन, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन से आपको लेना है तो 7 साल भारत में रहना होगा तो आप ले सकते हैं, और नेचुरलाइजेशन से लेना है तो 12 साल आपको भारत में रहना होगा, ठीक है। ये चलता है। अभी रिसेंट में अमेंडमेंट किया गया, आपको पता है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट CAA, जो काफी न्यूज़ में रहता है। 2019 में अमेंडमेंट किया गया था कि 6 कम्युनिटीज से जो लोग आते हैं, जिसमें कौन कौन सी हैं, एक्सेप्ट मुस्लिम सारी हैं, हिंदू, सिख, पारसी, बुद्ध, जैन, ये सब आते हैं आपके इन 6 कम्युनिटीज़ में, ठीक है। तो ये 6 कम्युनिटीज़ के जो 3 देशों से लोग आएंगे, 3 कौन से? एक तो बांग्लादेश, हमारा प्यारा बांग्लादेश, पीसफुल बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, ठीक है। तो यहाँ से जो 3 लोग आते हैं, ठीक है, और इन सब तीनों का बाप कौन है? इंडिया। तो यहाँ 3 इनके 3 दोनों का देश से, मतलब अफगानिस्तान का नहीं, इन दोनों का, बांग्लादेश और पाकिस्तान का। तो इंडिया अगर आते हैं तो नेचुरलाइजेशन से आपको 12 साल नहीं, आपको 5 साल रहना होगा भारत में, ठीक है। लूज़ कैसे कोई कर सकता है? लूज़ कैसे कर सकता है? तो लूज़ ऐसे हो सकता है कि आपकी सिटीजनशिप को टर्मिनेट किया जा सकता है, डिप्राइव किया जा सकता है। डिप्राइव मतलब, टर्मिनेट मतलब, जैसे आपने किसी और देश की सिटीजनशिप ले ली, आपकी नागरिकता चली जाएगी, या फिर आपने कुछ गलत डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं तो आपको चली जाएगी, या फिर अगर आप किसी एनिमी कंट्री की हेल्प करते हैं वॉर के समय तो आपकी नागरिकता चली जाएगी। और एक तरह से और एक्वायर की जा सकती है, अगर भारतीय सरकार हमारी किसी टेरिटरी को एक्वायर कर ले, जैसे पूरे बांग्लादेश को हम भारत का हिस्सा बना लें, ठीक, तो सारे बांग्लादेश के लोग कल ही भारत के नागरिक हो जाएंगे, उनको कुछ बर्थ डिसेंसी कुछ लेना देना नहीं, भारत का टेरिटरी बन गए, अपने आप नागरिक बन गए। अब आते हैं मौलिक अधिकार, ठीक है। गिनती का 2 मिनट का ब्रेक, गिनती का, ठीक है, और तुरंत आते हैं। कोई नहीं जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर मतलब अभी तक नहीं गया हो तो फंडामेंटल राइट, DPSP और फंडामेंटल ड्यूटी खत्म करके जाना, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इसके बाद खत्म ही है, इसके बाद तो सब कुछ कर ही चुके हैं, बचाए क्या है। 2 मिनट चल रहे हैं आपके, ठीक है, 2 मिनट से ज़्यादा नहीं होगा। फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन दिया हुआ इसमें, यानी आप भगवान के साथ कोई भी अपनी आंतरिक रिलेशन रख सकते हैं, भगवान के बारे में, भगवान के जो है आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, अगरबत्ती जलाइए, धूपबत्ती जलाइए, आप लोगों को बताइए कि देखो हम इस धर्म से हैं, हमने नया धर्म बनाया है हमने। अच्छा बताओ किसने यहाँ पे पारसी जो फेस्टिवल है नवरोज, उसको इंडिया में सेलिब्रेट करना स्टार्ट किया था? किसने? जल्दी बताइए, कौन था रूलर मिडिवल इंडिया का जिसने स्टार्ट किया था? कौन सा? उसने स्टार्ट किया था दीवाने अर्श, उसने सिद्धार्थ पैबोस को स्टार्ट किया था, बलबन। पारसी उसी ने ही पारसी फेस्टिवल नवरोज की स्टार्टिंग करी थी इंडिया में। और पारसी हमारी क्लासिकल लैंग्वेज में, तुम्हें पता है कि नहीं पता है? तो वो जहाँ शेड्यूल 8 पढ़ा है तो वहाँ क्लासिकल लैंग्वेज नोट कर सकते हो। अभी एक नंबर दूंगा तो उसमें नोट भेज देना जिसने भी बनाया हो, तो ठीक है, लास्ट में नंबर होगा, एकदम लास्ट में नंबर दूंगा, ठीक है। क्लासिकल लैंग्वेज हमारी 6 टोटल। तू शुरू तो कर, मैं आया। तू से तमिल, एस से संस्कृत, टी से तेलुगु, के से कन्नड़, एम से मलयालम, ओ से ओडिया आर्या, और पी पर पौवा प्रसन्ना पारसी, ठीक है। पारसी हो गया, फिर भैया फारसी जिसको बोलते हैं पर्शियन लैंग्वेज, पाली और प्राकृत, ये 9 लैंग्वेजेस हैं क्लासिकल लैंग्वेज, ठीक है। तो आर्टिकल 25 एक इंडिविजुअल को फ्रीडम देता है कि वो धर्म से संबंधित कुछ भी अपने अंदर रख सकता है। 26 एक रिलीजियस डिनोमिनेशन को राइट देता है। रिलीजियस डिनोमिनेशन का मतलब है ग्रुप, रिलीजियस ग्रुप को राइट देता है, रिलीजियस डिनोमिनेशन को, मतलब धार्मिक हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं इसको हिंदी में, क्या बोल सकते हैं, धार्मिक कार्यों के प्रबंधन किया जाती है, तो बोलेंगे धार्मिक कार्यों के प्रबंधन क्या आ जाती है। और धार्मिक कार्यों का प्रबंधन कौन करता है? ग्रुप करता है, एक डिनोमिनेशन करता है, रिलीजियस डिनोमिनेशन, फ्रीडम ऑफ कंसियंस एंड फ्री प्रोफेशनल प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन, ठीक है। तो इसके सब क्लॉजेस ध्यान रखना, आर्टिकल 26 के क्लॉज ए, क्लॉज बी, क्लॉज सी और क्लॉज डी इंपॉर्टेंट है, पूछा है क्वेश्चन। टू स्टैब्लिश एंड मेंटेन इंस्टीट्यूशंस ऑफ, यानी आप कोई भी इंस्टीट्यूशन मेंटेन कर सकते हैं, स्टैब्लिश करने के बाद आप अपने मैटर्स या फिर अफेयर्स को मैनेज कर सकते हैं। तीसरा, आप कोई भी प्रॉपर्टी बीट मूवेबल और इमूवेबल एक्वायर कर सकते हैं, ओन कर सकते हैं। जैसे वक्फ आपने नाम सुना है, इस पर भी मैंने आपको एक शॉर्ट वीडियो भी बना के दिया था, वक्फ।
वो क्या है, वो वक्फ एक प्रॉपर्टी होती है मूवेबल या फिर इमूवेबल, जिसको ओन एंड एक्वायर करता है वक्फ, जो कि एक रिलीजियस डिनोमिनेशन है। लेकिन इसमें ऐसा था कि वक्फ ने किसी प्रॉपर्टी को बोल दिया ये हमारी प्रॉपर्टी, खाली कर इसको, खाली करना पड़ेगा सर आपको, वक्फ ने बोल दिया है। और आप ऐसा नहीं कोर्ट में जाएंगे, ना 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 ना, कोर्ट में सुनवाई नहीं होगी आपकी, ये कोई मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये रियलिटी। वक्फ आपकी सुनवाई नहीं करेगा, वक्फ बोर्ड आपकी सुनवाई करेगा। और वक्फ बोर्ड ही जिसने आपकी प्रॉपर्टी को बोला है तो उसमें क्रिमिनल बैठेगा, वही डिसाइड करेगा। तो समझ सकते हैं क्या डिसाइड करेगा वो, ठीक है। कि अगर मैंने ही बोला कि प्रॉपर्टी मेरी है और फिर मैं ही डिसाइड कर रहा हूँ कि तुम्हारी प्रॉपर्टी की नहीं प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ये है, ठीक है। और मतलब इसमें क्या है कि लीगल एग्रीमेंट नहीं होता है, तो मैंने तुमसे बोल दिया कि तुम्हारी प्रॉपर्टी है, मैं तुम कल को बोल दूंगा, अगर कोर्ट में गया भी मान लो, तो बोल दूंगा कि इसी ने बोला था हमसे कि हमारी प्रॉपर्टी ले लो, इसी ने बोला था हमसे, क्योंकि ओरली दी जा सकती है, इसमें रिटन एग्रीमेंट की जरूरत नहीं। लेकिन अभी जो इसमें 40 अमेंडमेंट पोस्ट किए गए उसमें ये भी है कि आपको रिटन एग्रीमेंट यानी वक्फनामा के थ्रू प्रॉपर्टी लेनी होगी टू एडमिनिस्टर सच प्रॉपर्टी इन अकॉर्डिंग विद लॉ। आप कैसे भी इस प्रॉपर्टी को मैनेज कर सकते हैं। इसमें इस प्रॉपर्टी में मस्जिद बनाई है, इस प्रॉपर्टी में आप कुछ भी आपको रेस्टोरेंट खुलवाना है, कुछ भी करिए, वो आपका काम है, ठीक है। लेकिन वक्त में क्या होता है उसको रिलीजियस पर्पस से यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। तो आर्टिकल 26 है। 27 में क्या है, 27 नहीं लिखा, क्या कोई लिख देते हैं, लिख देते हैं, क्या दिक्कत है। 27 में क्या है, धर्म के नाम पर टैक्स नहीं लगाया सकता। इसमें सिर्फ 3 अक्षर याद करने, टैक्स, धर्म के नाम पर टैक्स नहीं लगाया जा सकता। फीस लगाई जा सकती है, फीस लेवी की जा सकती है, लेकिन टैक्स नहीं लगाया जा सकता। 28 आपको रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस नहीं दिए जा सकते हैं गवर्नमेंट एडेड स्कूल में, यानी कि धार्मिक आपको इंस्ट्रक्शंस यानी कि धार्मिक शिक्षा आपको किसी शैक्षणिक संस्थान में नहीं दी जा सकती है। रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस किस इंस्टीट्यूट में, जो गवर्नमेंट एडेड स्कूल होते हैं वहाँ पे, जहाँ पे सरकार से फंडिंग आ रही है, गवर्नमेंट से पैसा आ रहा है, वहाँ पे आपको रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस नहीं दिया जा सकता है, ठीक है। 28 में तो 27 टैक्स और 28 रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस हो गए। 26 में ये सब क्लॉजेस याद करके चलना, ठीक है, सब क्लॉजेस याद होनी चाहिए आपको। आगे बढ़ते हैं। एंड लास्ट सेकंड लास्ट है हमारा कल्चरल एंड एजुकेशन राइट्स, यानी कि सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार इसको बोलते हैं। ये कौन कौन से आर्टिकल में आता है, आर्टिकल नंबर 29 और 30, ठीक है। आर्टिकल 29 एंड 30, इनको हम माइनॉरिटी के राइट्स भी बोलते हैं, इनको हम माइनॉरिटी के राइट्स भी बोलते हैं। अब ज़्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत है नहीं, इसमें पूछता नहीं है डेप्थ में। फिर भी जैसे कि 29 में कहते हुए एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन, कोई भी सेक्शन ऑफ सिटीजन है और उसका कोई डिस्टिंक्ट लैंग्वेज है, कोई वो डिस्टिंक्ट भाषा बोलता है अलग सी, उसका कोई कल्चर है, ठीक है, उसका कोई कल्चर है, उसका कोई स्क्रिप्ट है, तो उसके पास ये पावर है कि उसको वो कंजर्व कर सकता है, उसके पास राइट टू कंजर्व है इन सबको, एनी सेक्शन, उसके पास इन सब चीज़ों को राइट टू कंजर्व है, ठीक। इसका क्लॉज 2 क्या बोलता है, इसका क्लॉज 2 बोलता है नो सिटीजन शैल बी डिनाइड एडमिशन इनटू एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, तभी बोल रहे हैं इसको एजुकेशनल राइट। और कल्चरल राइट क्यों बोला आप समझिए, ठीक है। नो सिटीजन शैल बी डिनाइड एडमिशन इनटू एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मेंटेन्ड बाय स्टेट या फिर रिसीविंग फंड फ्रॉम स्टेट, मेंटेन्ड बाय स्टेट या फिर रिसीविंग फंड फ्रॉम स्टेट, ठीक है। तो उसमें क्या है, किसी को मना नहीं किया जा सकता है एडमिशन को लेकर, ठीक है। ये है 29 और 30 क्या है, आगे जगह है कि नहीं है, आगे जगह है, ठीक है। तो आर्टिकल नंबर जो 30 है, 30, ये किसकी बात करता है, ये बात करता है कि जो माइनॉरिटीज़ हैं, ठीक है, दे कैन, इसका क्लॉज 1 बोलता है माइनॉरिटीज़ जो है, सिर्फ माइनॉरिटीज़, पहला वाला एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन, सिर्फ माइनॉरिटीज़ को नहीं, एनी सेक्शन, ये वाला सिर्फ माइनॉरिटीज़ को, कि जो माइनॉरिटीज़ हैं वो क्या कर सकती हैं, जिनका वो कोई मतलब एक इस्टेब्लिश कर सकती हैं और उसको एडमिनिस्टर कर सकती हैं, इस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को वो एडमिनिस्टर और इस्टेब्लिश कर सकते हैं, उसको एडमिनिस्टर कर सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक। क्लियर यहाँ तक, किसी कोई डाउट, यहाँ तक आपकी खत्म हो गया मेन आर्टिकल, मेन फंडामेंटल राइट खत्म हो गया, ठीक है। 6 बताए थे, 5 खत्म हो गए, बस एक और बाकी है, वो मतलब अलग ही अपने आप में। यहाँ तक किसी कोई डाउट तो नहीं, यहाँ तक किसी कोई डाउट तो नहीं है। चलो अब बढ़ते हैं आखिरी आर्टिकल, आखिरी फंडामेंटल राइट, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, आर्टिकल नंबर 32, 31 को रिपील किया जा चुका है, ठीक है। राइट टू प्रॉपर्टी वगैरह उसमें था, उसको रिपील किया जा चुका है, हटाया जा चुका है, ठीक है। 32 ये क्या, इसको बोलते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो अगर आपके फंडामेंटल राइट्स का वॉल्यूशन हो जाता है तो क्या, तो फिर आपको पावर दी गई, आपको एक और राइट दिया गया है, एंड दैट इज राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जिसके तहत आप सुप्रीम कोर्ट या तो चले जाइए या हाई कोर्ट चले जाइए, सुप्रीम कोर्ट चले जाइए या हाई कोर्ट चले जाइए, किसी भी कोर्ट में, या तो सर्वोच्च न्यायालय या फिर उच्च न्यायालय। और फिर होगा क्या, फिर आपकी कायदे से सुधाई करी जाएगी, फिर होगा क्या, फिर आपको फंडामेंटल राइट उसको सिक्योर किया जाएगा। लेकिन इतना भी आसान नहीं होता है कि अच्छा फंडामेंटल वॉल्यूशन हो गया, मैं सोने नहीं देगा, चलो सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, वो भैया चक्कर कटते रहोगे और जाने उसके बीच में तुम्हारे कितने फंडामेंटल राइट का वॉल्यूशन हो जाएगा, मुझे खुद नहीं पता चलेगा। तुम डायरेक्टली अगर सुप्रीम कोर्ट गए, जो कि तुम जा सकते हो, तो पहले तो तुमसे ये पूछा जाएगा, ये बताओ तुम पहले हाई कोर्ट क्या नहीं गए, जबकि जा सकते हो तुम यहाँ पे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट सबसे पहले तुमसे यही क्वेश्चन करेगा। सुप्रीम कोर्ट में आप आर्टिकल नंबर 32 का यूज़ करके जा सकते हैं, अनुच्छेद 32, और हाई कोर्ट में अनुच्छेद नंबर 226। अब क्योंकि यहाँ पे 32 की बात कर रहे हैं, 32 एक फंडामेंटल राइट है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट कभी मना नहीं कर सकता है रिट इशू करने से। हाई कोर्ट मना कर सकता है क्योंकि ये तुम्हारा फंडामेंटल राइट नहीं है, 226, 32 है राइट। रिट इशू दोनों कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, और सिर्फ अभी तक यही कर सकते हैं। किसी और को करना है रिट इशू तो पार्लियामेंट पावर देगा उस कोर्ट को, तभी वो इशू कर सकता है, और सेम तरह की रिट इशू करता है। और रिट हमने किस कंट्री कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया बताइए, लेकिन इसमें मना नहीं कर सकता, सुप्रीम कोर्ट ही कर सकता है। हाई कोर्ट जो है लीगल राइट्स को, यानी कि जो राइट टू प्रॉपर्टी है जैसे, तो उसको एनफोर्स करने के लिए भी रिट इशू कर सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकता है, ठीक। तो यानी कि हाई कोर्ट का जो रिजर्वेशन है इट इज वाइडर, ठीक है। अभी आते हैं रिट, अरे यहाँ पे रिट को लगाया तो कहाँ गया भाई, अरे यार मैंने पिक्चर लगाई थी यहाँ पे, कहाँ गई भाई, अब मुझे लिखना पड़ेगा। चलो कोई नहीं लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 5 तरह की रेट्स होती हैं, टाइप्स ऑफ रेट्स, टाइप्स ऑफ रेट्स 5 होती हैं। कहाँ से लिया है, ये हमने लिया है ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है, ब्रिटेन से लिया पर प्रोगेटिव रेट्स। पहला रेट है, पहला रेट है, पहला रेट है, पहला रेट है हेबियस कॉर्पस, ठीक है, पहला रेट है हेबियस कॉर्पस। दूसरा है
मैंडमस। तीसरा है प्रोहिबिशन, ठीक है। चौथा है क्यो वारंटो। क्या लिख दिया यार मैंने, सर्शियोररी, ठीक है, सर्शियोररी। और पांचवा है क्यों वारंटो। कहाँ थे अभी तक तुम, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, पहला हेबियस कॉर्पस, इसका मतलब होता है लिटल मीनिंग बताना चाहिए, टू हैव द बॉडी ऑफ, उसका शरीर लेके आओ। क्यों भाई शरीर का क्या करोगे, शरीर का इसलिए करेंगे क्योंकि उसका अनलॉफुल डिटेंशन हुआ था। कोर्ट बोलेगा कि तुमने उसको अनलॉफुली डिटेंट किया था। अनलॉफुल डिटेंशन अगर जब होता है, किसी को धर लिया जाता है बिना लॉ के विरुद्ध, तो हेबियस कॉर्पस मैंडमस। वी कमांड, हम तुम्हें दिशा निर्देश देते हैं, हम तुम्हें कमांड देते हैं कि ये तुम काम करो। तो जब कोई पब्लिक सर्वेंट गवर्नमेंट पोजीशन में बैठा हुआ आदमी, जिसको वो मैंडेटरी काम करना चाहिए, मैंडमस मैंडेटरी काम करना चाहिए, लेकिन वो कर नहीं रहा है, तो उसके खिलाफ इशू की जा सकती है। अगर वो काम मैंडेटरी नहीं है और कोई प्राइवेट, और या तो फिर अगर कोई प्राइवेट को लेके है, तो वो फिर ये इशू नहीं की जा सकती। जैसे मैं हूँ, मैं क्लास ना लूँ तो ये नहीं बोला सकता कि इनको तो क्लास लेना है, इनको तो सरकार से पैसा मिलता है, तो क्लास क्यों नहीं ले रहा है, तो रेट इशू नहीं हो सकती। प्रोहिबिशन, वी फॉरबिड या फिर टू फॉरबिड, मना करना, प्रोहिबिट करना, मना कर रहा है। कौन मना कर रहा है, हायर कोर्ट, हाई कोर्ट नहीं, हायर कोर्ट, जो बड़ा वाला कोर्ट है, वो नीचे वाले कोर्ट को बोल रहा है क्यों, औकात में रहो जरा, है उछलो नहीं जाता, ये बोलता है, सही बता रहा है, ये बोलता है एकदम हायर कोर्ट। वो जब लोअर कोर्ट अपने जुरिस्डिक्शन के बियॉन्ड जाने की कोशिश करता है, तो वो बोलता है रुक जा बेटा, खबरदार तुम आगे बढ़े आगे तो, ठीक है। सर्शियोररी का मतलब होता है टू बी सर्टिफाइड ऑफ, ये टू फॉरबिड, ये है टू बी सर्टिफाइड ऑफ, ये सेम चीज़ है जो प्रोहिबिशन है। हायर कोर्ट लोअर कोर्ट से बोलता है क्यों भाई, तुमसे मना किए थे ना, अपने औकात में रहना, तुम बाहर कैसे निकले, इधर आओ तुम, ये होता है सर्शियोररी। सही बता रहे हैं, बिल्कुल ऐसे बोलता है हाई कोर्ट लोअर कोर्ट। जैसे सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को बोल सकता है, हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को, मतलब जब लोअर कोर्ट अपने जुरिस्डिक्शन से, क्षेत्र अधिकार से बाहर निकल चुका है, कोई डिसीजन दे दिया है, तब हायर कोर्ट उस डिसीजन को नलीफाई करेगा, क्वैश करेगा और उस पर्टिकुलर केस को अपने अंडर में लेगा। क्यों वारंटो, क्यों भाई, क्यों बैठो यहाँ पे, यानी बाई वॉट अथॉरिटी ऑफ। तो जब कोई एक पब्लिक ऑफिस को कोई एक ऐसे बंदा होल्ड कर रखा है जिसके लिए वो लाइबल एलिजिबल नहीं है, तो उस केस में इसको इशू किया जाता है, किसने तुमको अथॉरिटी दी यहाँ पे बैठने, किसने, क्यों बैठो तुम यहाँ पे, ठीक है। ये हेबियस कॉर्पस जो है, रेट वगैरह प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के खिलाफ इशू नहीं की जा सकती। जल्दी जल्दी देखना, हिंदी मीडिया के स्टूडेंट थोड़ा देख लेना, इनको बोलते हैं, मतलब मैंने सोचा था यार लगा लेंगे, लेकिन लगा नहीं। बंदी प्रत्यक्षीकरण इसको बोलते हैं, ठीक है। इसको कुछ बोलते हैं, ठीक है, हेबियस कॉर्पस को बंदी प्रत्यक्षीकरण बोलते हैं, ठीक है। चलो अभी आते हैं आर्टिकल 33 पे। अनुच्छेद 33 ये बोलता है कि जो आर्म फोर्सेज के पर्सनल्स हैं, ठीक है, जो आर्म्ड फोर्सेज में जो लोग हैं, उनके फंडामेंटल राइट रिस्ट्रिक्टेड रहेंगे, उनके मौलिक अधिकार रिस्ट्रिक्टेड रहेंगे। इससे एसोसिएटेड है 50th अमेंडमेंट, जिसने ये बोला था कि भाई जो इंटेलिजेंस में लोग काम कर रहे हैं इन आर्म फोर्सेज में, डिफेंस फोर्स हो या सीएपीएफ हो, उन लोगों के भी फंडामेंटल राइट मौलिक अधिकार रिस्ट्रिक्टेड रहेंगे। ये 50th अमेंडमेंट ने बोला था, इसको अच्छे से याद करना। 5th अमेंडमेंट, 3rd आर्टिकल, 50th अमेंडमेंट, 33rd आर्टिकल, ठीक है। तो आर्म फोर्सेज के जो पर्सनल्स हैं, तो उनके मौलिक अधिकार ऐसा नहीं कि वो कहीं पर भी फेसबुक में अपना डीपी वगैरह वो कर सकते हैं, ठीक है सर, ऑफिसर कर सकते हैं, लेकिन जो कांस्टेबल सब रैंक में, तो वो बेचारे नहीं कर सकते हैं, ठीक है। यही तो फौज है हमारी, ठीक है, कि वो खैर छोड़ो। तो ये होते हैं, उसमें आप कुछ भी नहीं बोल सकते हैं कि मीडिया के सामने, वो तो हमारा बोलने का अधिकार है, हम तो खुद को ढंग से एक्सप्रेस कर सकते हैं। आर्टिकल 19 हमें राइट देता है, आर्टिकल 19 का क्लॉज 1 का सब क्लॉज है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, एक्सप्रेस कर सकते हैं, सोशल मीडिया में एक्सप्रेस कर सकते हैं। हमें खाना अच्छा नहीं मिलता है तो हम इसको लिख सकते हैं सोशल मीडिया में, यूट्यूब ना नहीं बना सकते हैं, डिसिप्लिनरी एक्शन हो जाएगा, आपकी ऐसी की तैसी कर दी जाएगी। जो लोग फोर्सेज में होंगे, अगर किसी के यहाँ पे, तो जब पूछेगा, हिम्मत नहीं होगी, आप बोलिएगा जरा कि ऐसा कर दो, जरा वीडियो बनाए तो खाना चाहिए, भाई साहब ऐसी की तैसी कर दी जाएगी आपकी, ऐसी मतलब सर्विस से तो हटाया जाएगा बाद में, लेकिन उसके पहले ही आपको इतना, खैर छोड़ो, टॉर्चरस, ठीक है। 34 तभी एक दो लोगों ने वीडियो बनाई थी, लेकिन सिर्फ एक दो लोग ही, और उनका आज क्या हुआ किसी कुछ पता नहीं, ठीक है। 34 फिर आर्म फोर्सेज है। 34 क्या बोलता है, 34 बोलता है कि जब मार्शियल लॉ लगा होगा, जो कि कहाँ से हमने बोरो किया, जरा बताएंगे किस कंट्री से, तो आपके फंडामेंटल राइट्स को जो है रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा। अगर मार्शियल लॉ लगा होगा, तो मार्शियल लॉ क्या होता है, मिलिट्री रूल, मिलिट्री का शासन, जैसे राष्ट्रपति शासन, सॉरी राष्ट्रीय आपातकाल पूरे देश में लगता है। मिलिट्री रूल जैसे मान लेते हैं कि मणिपुर में मिलिट्री रूल लग गया, वेस्ट बंगाल में मिलिट्री रूल लग गया, तो यहाँ के लोगों के फंडामेंटल राइट रेस्ट्रिक्ट हो जाएंगे। एंड द लास्ट आर्टिकल इज कि इसको लेके, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स को लेके, मौलिक अधिकारों को लेके, फंडामेंटल राइट्स को लेके सिर्फ देश की पार्लियामेंट के पास ही, सिर्फ देश की जो संसद है उसी के पास ही अधिकार है कि मौलिक अधिकारों को लेकर वो कानून बना सकता है, और स्टेट लेजिस्लेचर, राज्य का विधानमंडल कानून नहीं बना सकता है फंडामेंटल राइट्स को लेके। खत्म, ठीक, क्लियर। डीपीएस के फंडामेंटल ड्यूटी बस खत्म। इतना कड़वा है भाई ये, अभी मौसमी का जूस दिया गया मुझे, ठीक है, इतना कड़वा है यार, पानी पीना पड़ेगा इसका, कैसे पिया जाएगा ये। 2 बज गए, अच्छा 2 बज गए, 2 नहीं बजे अभी। फंडामेंटल ये डीपीएसपी को खत्म करवाते हैं और बस फंडामेंटल ड्यूटी खत्म। मुश्किल से 2:30 बजे तक क्लास जाएगी, बहुत अगर खींचेगी तो, बता रहा हूँ बहुत खींचेगी तो। और फिर तुम्हें इतना मजा आएगा ना, 2:30 बजे है, सुबह से पढ़ा, क्या मजा आया है कि नहीं, आएगा कि नहीं। एथेनॉल के साथ ले लो सर, सॉल्ट एडेड है उसमें, गटक के ले लो, अच्छा बूरा मिला लो, अच्छा होता है। कल मैंने तुम लोग की काफ़ी तारीफ करी अपनी मम्मी से, बहुत ऐसी कुछ मतलब बात चल रही थी, तुमने तो मतलब मम्मी को बोला मैं हल्के मत लेना, मेरे स्टूडेंट बहुत केयर करते हैं मेरी। हाँ, अभी स्टूडेंट को जब भी अगर पता चल जाता है कि मतलब मेरी तबीयत अगर ख़राब है, ऐसा कुछ है, जैसे गर्दन में दर्द हो रहा है, पीठ में, तो मेरे स्टूडेंट काफ़ी केयर करते हैं मेरी। हाँ, तुरंत टाइम पे इन्फॉर्मेशन लेते हैं, सारी एडवाइस देते हैं कि सर ये यूज़ कर लो, वो यूज़ कर लो, तो हल्के मत लेना। तो मैंने कल तुम लोग की काफ़ी तारीफ करी है, ठीक है, तुम लोग भी हल्के मत लेना। चलो तभी आते हैं बेसिक्स क्या है डीपीएसपी। तो डीपीएसपी की अगर बात करें, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तो ये हमारे पार्ट नंबर 4 में आते हैं, ठीक है। मौलिक अधिकार खत्म हो गया पार्ट 3 में, ये पार्ट 4 में, और ये आर्टिकल नंबर अनुच्छेद नंबर 35 पे वो खत्म हो गया, 35 का। तो 36 से लेके 51 के बीच में दिया हुआ है डीपीएसपी के बारे में। किस कंट्री कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया। आयरलैंड और कहाँ लिया था, RED, रेड,
राज्यसभा में इलेक्शन ई से हो जाएगा, ई से क्या था, Yes. इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, और डी से डीपीएसपी। ठीक है, तो ये हो गया डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी। अब बेसिक्स क्या है भैया, इसमें 3 तरह के सवाल बनते हैं, एक बेसिक, एक इस आर्टिकल में क्या है, और तीसरा किस अमेंडमेंट से किसको हट गया। अब एक डीप ब्रीथ लो और अपना फोकस को बना के रखना एंड तक, बस दो एक बार और डीप ब्रीथ लेने को बोलूँगा, फंडामेंटल ड्यूटीज यूज करने को खत्म बस। ठीक है, डीप ब्रीथ लो सो दैट फोकस बना रहे, हिलना नहीं चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। Dash is बेसिक्स, the meaning सबसे in the पहले term हाईलाइट से वो सब तो मैंने बता दिया। present in ये जो है नो फीचर है, ये किसने बोला था, ये कॉन्स्टिट्यूशन के नोवेल फीचर हैं, ये अंबेडकर जी ने बोला था। अब तुम में से कुछ लोगों ने सुना होगा। Ramayana is a long time enemy of Krishna. A long time enemy of Krishna. Dash released the many kingdoms that represent independence. They then gave them back their kingdoms. This made my husband so popular that as they went after that they were treated with so famous. Okay. All drivers are affected by road rage, whether they are directly or indirectly. Individual coping qualities dash the behavior multiply the individual coping qualities influence the behavior of stressful driving. Instead of being enraged over circumstances beyond their control, drivers must learn to be patient. Patient on the road. We must be dash. We must be obliged to control our emotions. We might be able to control our emotions. Road drivers are also more likely to dash more traffic offenses, more likely to incur more traffic offenses. In which part of the globe the genetic engineering is well progressed? Okay. What is the meaning of the phrase holding out? Holding out. Which of the following word is the same meaning as the word obliterate? Holding out, obliterate. Which of the following reason for progress is which of the following is a reason for progress in genetic engineering? Genetic innovation may lead to. Okay. For the globe, genetic engineering is well progressed. होल्डिंग आउट का मीनिंग क्या है, obliterate का मीनिंग क्या है, which of the following is the reason for progress in genetic reason for progress in which of the following is the reason for progress in genetic reason for progress in genetic engineering. Okay, no problem. And genetic information means okay. Recent advances in science and technology have made it possible for geneticists to find out abnormalities in the unborn fetus and take immediate action to rectify some defects which would otherwise prove to be fatal to the child. Though genetic engineering is still at its infancy, scientists can now predict with greater accuracy a genetic disorder. It is not yet an exact science since they are not in they are not in a position to predict when exactly a genetic disorder will set in. While they have not yet been able to change the genetic order of the gene in germs. They are optimistic. They are holding out that in the near future they might be successful in achieving this feat. Holding out. And they have, however, acquired the ability in manipulating tissue cells. However, genetic misinformation can sometimes be damaging. For it may adverse. Okay. However, genetic misinformation can sometimes be damaging for it may adversely affect people psychologically. Genetic information may lead to a tendency to brand some people as inferiors. Yes, genetic information can therefore be abused, and its application is deciding the sex of the fetus and its subsequent abortion is now hotly debated on the legal line. But on this issue, geneticists cannot be squarely blamed, though this
which has often been labeled at them. Okay, with media societal problem. Present genetic engineering is a costly process of detecting disorders, but scientists hope to reduce the cost when technology becomes more advanced. This is why much progress in this area has been possible in scientifically advanced and rich countries like USA and UK and Japan. It remains to be seen if in the future this science will lead to the development of a race of supermen or will be able to obliterate disease from the world. Like same near the obliterate. USA, UK, Japan, USA, UK, Japan. India, India. Which of the following is the reason for the changing engineering? Management in Haiti, economic South Africa, countries can provide the infrastructure. You know, sound and scientifically advanced countries can. Which of the following is a feature of our constitution adoption of the universal rights franchising equal rights to all citizens, especially privileges for the social liberties and benefits in India. क्या क्वेश्चन which of the following was a rank-based administration system during the Safari? Which of the following pairs regarding the judicial powers of the Indian president are incorrect? Innovation,
missing or mitigating